A very warm good afternoon to all. I, Rajesh Kumar, Manager Safety, SSO, heartily welcomes one and all to today's webinar on rail and road safety in steel plants. For today's webinar, at the start, I would brief all the attendees on some basics. For today's event, all the attendees, that is participants, are by default on the mute mode and are requested to remain so throughout the session. They won't be able to mute or unmute themselves. For asking the questions or the queries, all are requested to use the chat box on the right-hand side bottom of their screen. They can type their question there during or at the end of the session as suitable. All the questions shall be taken together at the end of the session by our esteemed speaker. For reference purpose, the copy of presentation shall be made available at the SSO portal shortly after the webinar, as has been made for the cases of the past webinars also. Friends, it is said that challenging times throw open the myriad of opportunities. And if I quote the words of great Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Similarly, SSO, under the leadership of Sri KK Jha, ED has aligned with the present challenging times and has been on the forefront of spreading safety awareness programs in collaboration with our plants with the extensive use of the digital medium. Today's webinar on rail and road safety in steel plants is 11th of the series. Till date, in this series, we have covered more than 2000 number of participants. Steel plant, as we all know, covers and handles huge amount of materials for the production of steel products. These huge amounts of material needs to be moved during various stages of production. And due to its inherent nature, all these types of the movement of men and material which are taking place in the steel plant. We also have extensive internal rail network which is utilized for the movement of liquid metals and external railway wagons and transportation of items inside the plant where road net transport is not suitable. All these mandates the renewed hazard perception of rail and road safety. If we look at our past record over the last 10 years in SAIL, rail and road contributed for 32 fatalities, which is around 14% of total number of fatalities in SAIL in last 10 years. And this number of fatalities has spanned across all the 5 integrated plants. Even in this current year, 2020, which we are ending, we had 1 fatal, 3 reportable cases, and 6 non-reportable cases only due to road accidents. This points out the pertinence of the today's session and the importance of rail and road safety at our workplace. To cover this, our speaker for the day is Sri Anil Kumar Tiwari, GM Safety, Durgapur Steel Plant. Shri Tiwari has joined SAIL in 1993 and is presently working as HOD Safety at DSP. Shri Tiwari is MR for ISO 45001 system at DSP. He has undergone training in Japan on industrial safety and is qualified safety auditor. He is a qualified safety officer, auditor and trainer. Shri Tiwari is lead auditor of QMS, EMS and OSHAs, and he is also member at expert panel of NSC Mumbai. He is a professional who has wholesome experience and has thorough grasp in the field of safety, and I can say with the profound confidence that for the today's topic, he is one of the best speakers in our organization that we can look forward for the inputs.
Sir, Tiwari sir, Thank you, Rajesh, very welcome. much for the kind words. Now I will start sharing my screen. Rajesh, the screen is visible, it Yes, sir. seems. Yes, sir. The Okay. presentation has loaded, sir. You may continue, Okay. sir. Okay, and very good afternoon and namaskar to all the participants who have joined this webinar. As already told, I will be discussing on this road safety and rail safety. Though the name of the program is Rail and Road, first I will be covering road, then I will be switching over to rail safety. So this is a topic, especially road safety, which pertains not only to our work life. It has much to do with our personal life also. We are either this driving our cars or we are riding our two-wheelers. So the safety, road safety aspect always comes into play, and it's very integral part of our everyday or day-to-day life. So now to have a overlook or a background of the thing, so there are certain interesting figures which I am producing here. These figures have been taken from our MORTH website. MORTH is our Ministry of Road Transport and Highways. So this website I have seen going through a phenomenal change over the last 5 years or so. This is a very good website. They have now redesigned it, and they have uploaded with a lot of relevant information which a commoner like us likes to have. So this 2020 data will be published or uploaded, say maybe by February and to mid of March. So the current data uploaded over there is the figures of calendar year 2019. So now, how at our national level, what the scenario is like. So total number of accidents in 2019 in our country, they have been reported as 4,49,002. Out of this total accidents, deaths were 1,51,113, and this 4,51,000 plus injuries they have contributed towards. So now this is important here. So the total number of these accidents and this number of deaths, 1,51,000, they translates into what? They translates into 1,230 accidents and 414 deaths every day. Now, if we further say see it in a macro level, then how it looks? It is nearly 51 deaths, 51 accidents and 71 deaths every hour. So this is something very alarming. So every hour 17 deaths are taking place, and every hour, say in a 60 minutes, 51 accidents. So one accident every minute is taking place somewhere in our country. So, and who are the sufferers of the or the victims who take the brunt out of these accidents? It's the age group of 18 to 60. They share for 84% of the total road accident deaths. So this is the working age group. People move, they have high mobility, they have to move out of their houses, they have to reach their offices, they have to make official travels. So this age group, it is contributing towards 84% of total road accidents. Now, one silver lining in this whole gloomy picture here is that over last year, if we say CPLY basis, say that is calendar year 2018, if we compare with 19, there has been a reduction of 3.86%. So this is one, say, I can say a ray of hope we have, that lot of interventions, whatever has been taken, and in the government published documents, what they are claiming is in the next line, that result of Motor Vehicle Act implemented in states from 1st September. This is the stiff penal provisions which have come. Now, and inter alia stiff fine penalties for traffic violations, and this electronic enforcement, this is speed monitoring, especially in this area. So these things have contributed, and they have yielded in a roughly about 4% of reduction in from 2018 to what we have achieved in 2019. About 30% of deaths can be attributed to non-usage of helmet. Again, this is very, very pertinent and alarming. This 30% deaths just because of only non-use of helmets, which is totally within our hands. So in plant perspective also, this is something which comes into play as a major factor.
And 14% of the deaths, they are attributed to non-use of seat belts. Again, we are driving our cars, but again, seat belt, that alarm is going on. What we do, either we have no mechanism to putting that alarm off. So what we are doing, we are taking a shortcut and we are inserting the seat belt hook in that, or you are buckling it up so that the sound goes off, but we are not applying these seat belts. But they contribute for 14% of death cases. Even an accident happens, 14% death takes place because of this non-use of seat belts. Now, again, this is something I personally also found very interesting. Vehicles more than 10 years accounted for 41% of accident-related deaths. Now, again, this can be a disputable thing. Somebody can always claim that, okay, I'm maintaining my vehicle very nicely as per the this manufacturer's manual. I am going, so this age is it is just like a number, and so it has nothing to do with it because I'm maintaining it at a higher standard. But what the government statistics, these are not, these are from authentic government MORTH site only. So they have come to a conclusion, and so we cannot simply write it off. So this 10 years or older vehicles, they are accounting for 41% of accidents. Overloaded vehicles, they accounted for 10% of deaths. And again, this is what we normally talk about in whenever we discuss road safety, that we contribute for 10% of the fatalities with only 1% of vehicular population on our roads. So this is an overview of the whole thing, just to give you a feel of how serious things are at national level also. Now, again, taking a coup from there only. So some of the further data I am trying to decipher here. So we have this type of road: national highways, state highways, and other roads. So they have categorized accident road wise also. So national highways, if we consider in our country, we have only 2.03% of the total road length, which falls under this national highway category. And you see the percentage of deaths over there, 35%, only 2.03% of road length, and they are accounting for 35.7%. So this whole think tank of this MORTH or the government machinery, they are alarmed by this thing. And so new legislations, you will see that a lot of changes are constantly taking place in our Motor Vehicles Act and Central Motor Vehicles rules. So this national highways, this is again, I'm repeating here so that it gets hammered in your minds also. Only 2.03% of the total network or the length of the roads, and they account for 35.7% of accidents. State highways, again, they account for around 3.01%, and again attributing, or this 24% 8 cases are attributable to the state highways. Other roads, they account for 95%, and accident scenario, there is the percentage of accident is 39%. Now here also one more data what I got from that this ministry's the latest report is, now two-wheelers category, road user category. So two-wheeler is one category. They are accounting for 35% of all fatalities. Cars, taxis, vans, and light motor vehicles, they account for 18.6, pedestrian 13.9. Pedestrians are also put in a road user category because they are also using the roads. Trucks about 10.7, buses 4.9, and bicycles 2.9. Now, again, here at the bottom, so what I have highlighted here is India ranked. This is again a 2018 figure because 2019 figures have not yet come. So India ranked first in number of persons killed across 119 countries. Data for which was available, and this data is given by International Road Federation. This is an global body headquartered at Geneva. So they produce all the road accident statistics, and they collect, and they again further share it with member countries. So India was the number of road accidents in India. India was number one out of 199 countries. So yet the 2015 to 2019, as I told you, you come to this figure that 2019 is a bit silver lining we are getting here. That is, there is reduction. 2018, the total accident which took place on our roads was 4,67,044, and here it was 4,49,002. So here there is a reduction of minus 386%. This was what I mentioned in my first slide also.
Now, this is again institutional setup. How in our country this road safety is being managed, or what are the central agencies which are working towards improving our road safety. So this first is the MORTH, and all other ministry, these institutions are there related to MORTH only. We have this National Road Safety Council. Then we have Transport Development Council. Then we have Indian Road Congress. Indian Road Congress is an autonomous body, and they lay down standards and guidelines for road and bridge engineering. Their standards are available, but only they are not freely available. Only few we can get free of cost. Others we have to pay. Then we have the Central Road Research Institute, New Delhi, and this automotive, because now in road safety, and the subsequent slides I will be coming, we talk of 4E's. This 4E, one is the engineering control we call. Now the engineering control, when we talk of engineering in the road design as well as the vehicle design. So now I will in details I will be discussing later on. See what engineering with respect to vehicle means, and what engineering controls with respect to road design means. But these are the institutes who are responsible for this vehicle design part. Now, this contribution of role, now coming to our sale perspective, or I've given here figures from this 2012 to 2020, last 9 years. So road and this rail. So what I have done is I have clubbed together, because the topic is a amalgamation of this rail and road safety. So this you can see that in 2020 we have 2 road fatalities and there was 1 rail fatality. There is one case which is still hanging. That case is of Durgapur steel plant only. We are awaiting this post-mortem report to come. If the post-mortem report comes otherwise what we are expecting, then it will be 2 plus 2. So whatever figures are there, so in this you can see that out of total sail fatality of 168 in these 9 years, this 168, you see that here we are getting 34 is the 21 plus 13, it comes to 34 is the rail and road fatality. So if we see that this percentage contribution of rail and road over past 9 years, or this 9 year span, it comes to approximately 20%. So rail and road is a area of concern for us inside the plant also. Now, if we further dissect this subject, then this coming to road part. So, in the ministries and all good literatures, when we see on road safety, this is very important that there are 3 distinct factors which are contributing towards all these road accidents. So, what are these factors? One is the human error I have written, or it is human factor, then road environment factors, and then vehicular condition or vehicular factors. So, this either in isolation or in combination, they produce road accidents. So in the first line, if you see, this is again, the statement has been taken from that guideline only, that road accidents, they are multi-causal. It may so happen that 2-3 factors together clubbing and resulting in an accident. So they are result of an interplay of various factors. And the broad category is like this. So now this human factor, in the next slide also human factor will be further dealt. So human factor, this traffic rule violation is something which has been singled out. So what are the traffic rule violations which leads to accident? That is over speeding. This is one menace which we are facing inside our plant also. Though we have put in lot of boards, 20 kilometer, 30 kilometer, this, that, but you see that implementation part again is a bit difficult, and we are lagging there too much. Then drunken driving or consumption of alcohol and drugs. Here, if you see that in Motor Vehicles Act section 185, it states that more than 30 milligram of alcohol, 100 ml of blood is permissible, and if that is almost say half a bottle of beer, if you take, you will be reaching that figure approximately. So driving on wrong side and lane indiscipline. This driving on wrong side, I remember one the 2020 case only of RSP, where a person was on the wrong side and he met with an he was just run over by the rear wheel of a lorry. Lane indiscipline, people shift over lanes and say where they have not to change, they will change the lanes. So this lane indiscipline also causes a lot of accidents. Jumping off red light is a problem.
because people are in a hurry and they don't respect these traffic lights, and they jump it or cross it even if there is red light in their direction of movement. And use of mobile phones, again, this is a big menace in the planned different work arena. Also, we are seeing that mobiles are that these mobile phones that they are adding to our accident potentials. Then driving without valid driver license, and then use of safety devices. In subsequent slides, I will be discussing this in detail also. Yes. Now, in this slide, again, these human factors further, it has been elaborated. Here, human factors, the other sub-factors are excessive speed, then the rash driving is there, then there are people who have this tendency, they don't respect the right of use of the road for other road users. But the road is for all the users, so this right of, we need to respect the right of use of other riders also or other road users. Okay, by this carelessness is one thing, violation of rules and regulations, failure to see or understand traffic situations, sign, signal, temporary effects due to fatigue, sleep, or alcohol. This is what we say is this temporary effects. So once you are fatigued, then your reflexes are slow and you have a tendency to meet with an accident. Now, pedestrians, they contribute to towards accidents by violating regulations, using a carriageway meant for vehicular traffic. Then their physical condition, their at-risk behavior, and also say a pedestrian is required not to cross a certain line on the road, which is a continuous line, what we say, but a pedestrian crosses that one, or he tries to cross a road where he is not meant to cross. So in that way, the pedestrians contribute towards accidents. Now, passengers, they are also responsible for certain accidents, say alighting from or getting into, say, when you are alighting or you are deplaning from a moving vehicle, the non-use of safety belt by the passengers. Again, these seat belts are the restraint system what we have, and child locks. So say if child lock is not there, the door of your vehicle getting open and the passengers are thrown out of the vehicle. So that sort of accidents also take place, and they all are categorized under the human factor. Now, coming to the second major factor is the road environment factor. So the road conditions, slippery, skidding, potholes, ruts, etc. Then defective road design. Defective road design, especially at the curbs or the road where it tends. The road has to have an inclination which can take care of the turning of the vehicle. But if the road is not properly designed, the vehicle is thrown off the road. So this curb design is very important. And inadequate side distance because of the I will not say undulations, but because of uneven elevations on the road. What we see is that this side distance, you are not able to see beyond a certain distance, and this by impaired side distance, it causes accidents. Then unfavorable weather conditions like mist, fog, dust, smoke, or heavy rainfall. Stray animals on the roads, a lot of accident we see that, especially in that the clause we have in all our plans of that extended benefit scheme. So in that extended benefit, what we are giving is we are giving coverage of say for 8 hours you are covered under IOW, and before start of your duty 1 hour before, and after end of your duty that 1 hour till you travel to your place of residence. So that in those extended benefit accidents, what I have seen throughout my life is that these stray animals, they are contributing towards say maybe 90% of the accidents, or this is what is claimed when we call the victims for before sanctioning their leaves. The victims are called and counseled also. So during that counseling process, everyone says साहब गाय आ गई थी, कुत्ता आ गया था, बकरी आ गई थी, तो मैं जा ही रहा था सीधा और वो अचानक से गाय आ गई. तो that sort of say स्टोरीज दे मतलब वो इतना कॉमन हो गया ये चीज कि द पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग, आई कैन मेक आउट कि व्हाट विल टेल द हाउ द स्टोरी विल एंड.
तो ये चलता है। तो दिस स्ट्रे एनिमल्स दे आल्सो दे आर कवर्ड अंडर रोड इन्वायरमेंट फैक्टर। तो नए जितने भी एक्सप्रेसवेज बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, आप देखेंगे कि दोनों तरफ में वो बैरिकेडेड रहते हैं। अदर देन दीज रोड यूजर्स जो मतलब जो पैसे दे के उसमें जा रहे हैं, वो कोई भी नहीं घुस सकता है। स्ट्रे एनिमल्स के लिए कोई एंट्री का प्रोविजन नहीं है। कोई भी आदमी भी अचानक से कोई क्रॉस करने का कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज द होल एरिया इज प्रोटेक्टेड, द होल लेंथ, सो मे बी 100 मीटर, 150 किलोमीटर, इट इज the whole your highway is barricaded. So by that is one way by which the stray animals are being taken care of. And ill-designed roundabouts, merging, diverging points, blind spots. ये चीज में थोड़ा सा मैं merging, diverging जो है और ये roundabouts, subsequently I will be discussing this one. Vehicular factor में होता है, जबकि vehicle में, जबकि इसका contribution बहुत ज्यादा नहीं रहता है, but failure of brakes है, steering system का failure है, लाइटिंग सिस्टम आपका फेल हो गया, या लाइटिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर हो गया, टायर का बर्स्टिंग, इट एट टाइम्स हैपेंस, एंड एनी अदर डिफेक्ट इन द व्हीकल। सम अदर फैक्टर्स जो हैं, जो कि ये तीनों फैक्टर में आपस में अगेन फर्दर इंटरप्ले करते हैं, तो वो हो गया इनकरेक्ट साइंस और सिग्नल्स, गेट ऑफ लेवल क्रॉसिंग नॉट क्लोज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब ये ह्यूमन में भी आप इसको डाल सकते हैं। रिबन डेवलपमेंट, ये रिबन डेवलपमेंट नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी जब एक हाईवे बन गया तो नॉर्मली वो, या हाईवे या कोई अच्छी सड़क बन गई, तो सड़क के दोनों तरफ में डेवलपमेंट होने लगता है, और वो डेवलपमेंट धीरे धीरे पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो लोग हैं वो इंक्रोच करना शुरू करते हैं, और उसके बाद कभी कोई बच्चा क्रॉस करता है, या फिर पेट एनिमल्स आ जाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं, दे स्टार्ट क्रॉसिंग। और तो ये टोटल चीज को रिबन डेवलपमेंट बोलते हैं, कि अलोंग द रोड ये दोनों साइड में जो आपका जो डेवलपमेंट होता है, जो इनहैबिटेंट्स आते हैं, घर बनते हैं, लोग रहने लगते हैं, तो दोनों साइड में रिबन डेवलपमेंट अगेन अगेन उसका इल इफेक्ट होता है, जो रोड ट्रैफिक यूजर है उसके ऊपर होता है। तो दिस रिबन डेवलपमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। देखिएगा बहुत जगह बहुत एक्सीडेंट्स ये रिबन वाले एरिया में होते हैं। और ये जो कभी कभी जो अपने एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स रहते हैं ना, दे आर इल लोकेटेड, मतलब इसमें क्या है कि जो आपका इम्पेयर्ड विजन हो जाता है, आपको दिखता नहीं है, आप जो ब्लाइंड कॉर्नर बन जाता है, और उसके चलते भी एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड वो क्या है, द समरी लाइन इज अगेन द अबव फैक्टर्स आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन दे कॉजेज रोड एक्सीडेंट्स। नाउ यहाँ पे चूंकि आपको अगर रेलिवेंस नहीं मिल रहा होगा ज्यादा, तो मैं अभी एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी एक फूड फॉर थॉट में आपको अभी दे देता हूँ, मे बी ड्यूरिंग डिस्कशन वी विल टॉक ऑन दैट, कि हम लोग बहुत लोग बाइक चलाते हैं, जैसे विंटर है तो कार प्रेफर कर रहे हैं, समर है तो वी प्रेफर कमिंग बाय बाइक ऑल्सो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे। अब ये चीज हमें बताएंगे कि हमारे जो बाइक है, अगर बाइक में हमें डिस्क ब्रेक लेना है, अगर बाइक में एक ही डिस्क ब्रेक है, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो वो फ्रंट व्हील में वो डिस्क ब्रेक क्यों रहता है, अगर एक ही डिस्क ब्रेक है? कभी ऐसा नहीं होता है कि सिंगल डिस्क ब्रेक है एंड इट इज ऑन द रियर व्हील। ये क्यों होता है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। दिस इज जस्ट फूड फॉर थॉट फॉर यू। तो अभी जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सीडेंट फैक्टर्स, ओनली ह्यूमन जो है इनका कंट्रीब्यूशन हम 57% बोलते हैं, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल जो है 26%। दीज आर जस्ट स्टैटिस्टिक्स, मैं इसमें और नहीं जाऊंगा, ये स्लाइड आपके पास रहेगा। नाउ दिस इज वेरी, जो ड्राइविंग प्रोसेस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट कैरी। ये जो ड्राइविंग का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस जानना इसलिए जरूरी है कि आपने लाइफ में अपना देखा होगा कि सम ऑफ योर क्लोज फ्रेंड व्हेन ही मीट्स विथ एन एक्सीडेंट और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इट्स नॉट की फेटल या ऐसा है कि वो एकदम कॉमा में या आईसीयू में है, गिरा है, चोट लगी है हॉस्पिटल में, मे बी 3 दिन हॉस्पिटल में रहेगा वो, तो आप दूसरे दिन उससे मिलने जाते हैं या पहले दिन ही हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हाट ही सेज, आप पे एक नेचुरल सा क्वेश्चन होता है कि यार ये क्या हुआ, तुम देखे नहीं? तो आप देखेंगे वो फ्रेंड आपका बोलता है कि सब दिखा तो था, मैं देखा था, तो फिर क्या हुआ, कैसे मार दिए? नहीं, मैं देखा था, मैं ब्रेक भी किया था, पर पता नहीं वो ब्रेक लगते लगते ही जो धक्का भी लग गया। तो ये चीज हमेशा होता है, ये आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, यार मैं तो ब्रेक मारा, एक गाय वहां से, मैं गाय को देख रहा हूँ, गाय मुड़ेगी, मैं सोच भी रहा था, ब्रेक भी मारा, पर जब तक वो मैं रुक पाता, वो गाय में धक्का लग गया और जो है मैं नीचे गिर गया। तो ये जो टोटल क्यों होता है ये चीज, हमें लगता है पता नहीं वो क्या ऐसा चीज हो गया जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ, अदरवाइज आई वाज फुल्ली कॉन्शियस, आई वाज इन कंट्रोल, एंड बट स्टिल द एक्सीडेंट हैज हैपेंड। तो इसके लिए हमें ड्राइविंग प्रोसेस समझना है, एंड ये ड्राइविंग प्रोसेस में जो है वन ऑफ द साइंटिस्ट विच ही दिस इन्वेंटेड दिस पार्ट इज इट्स कॉल्ड पीव थ्योरी। तो ये जो पीव थ्योरी है क्या है ना, इसमें पी स्टैंड्स फॉर परसेप्शन टाइम, आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्शन टाइम, ई स्टैंड्स फॉर इमोशन टाइम, एंड वी स्टैंड्स फॉर वोल्यूशन टाइम।
तो ये जो है शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं इसमें। तो परसेप्शन टाइम क्या है, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक सिंपल से ग्राफ में इसी चीज को बता दूंगा। परसेप्शन टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंसेशन रिसीव्ड बाय द आईज और ईयर्स टू बी ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। कभी भी आप तो देखेंगे कोई चीज, उसके बाद ही तो रिएक्शन होगा। तो आपके लिए जो सेंसेशंस जो ये रिसीव करेंगे वो सेंसेशन है आपके आईज एंड ईयर्स। तो ये तो, और नीचे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू परसीव ए सिचुएशन और एन ऑब्जेक्ट। दिस इज फंक्शन ऑफ आईज एंड ईयर्स। उसके बाद आ जाता है, जब हम एक बार देख लिए उसके बाद क्या हुआ, अब हम दिमाग में चले जाएंगे। इंटेलेक्शन टाइम, ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट थॉट्स, रीग्रुपिंग एंड रजिस्टरिंग न्यू सेंसेशंस। और इसी को इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। इंटेलेक्शन टाइम हमें जो है, पहला जो है हमारे some sensations we have received from our eyes and ears, then what we are going to do, we need to understand these sensations, the brain reads those things. Then emotion time kya hai bhai, time elapsed required to overcome disturbances such as fear, anger, other emotions, superstition, etc. with reference to the situation. We reach a decision whether we want to stop or not. जब आपको सेंस, आपका आइज एंड ईयर से सेंस मिला, इंटेलेक्शन टाइम दिमाग में गया, दिमाग उसको जो है थॉट्स को ग्रुप करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, अभी जब ये प्रोसेसिंग हो रहा है ये डेटा आपके दिमाग में, तो प्रोसेसिंग में क्या आएगा आपका, जैसे सुपरस्टिशन की एक बात हो रही है, जब डिसीजन रीच करने में, जैसे छोटा सा एग्जांपल यहाँ दूंगा, आप जा रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए, मान लीजिए कि आपका कोई जो है, कोई आपका एग्जाम है, आप या आपका मान लीजिए कि अभी नए सिस्टम में आपका इंटरव्यू होगा, आपकी प्रमोशन का इंटरव्यू है, आप घर से कार से आ रहे हैं, आते के साथ में आपने देखा कि एक बिल्ली ने आपके रास्ता को क्रॉस किया, ठीक है ना, एक कैट हैज जस्ट क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके दिमाग में है कि कैट का क्रॉसिंग द रोड इज ए वेरी बैड साइन एंड ए ब्लैक कैट डूइंग सो इज इवन वर्स. If that is in your mind, so you will see here that the volition time, the time required, this emotion time required for processing will be bit more. You will be in a fix whether to stop or not to stop. If this superstition thing overrides, then you will stop for some time. You will wait for somebody to cross the road, and then maybe you will start your car. Just an very this example I am giving, it may not happen with you, but it's a practical sort of thing. I have seen people doing this, so I am referring to this example. So this is the emotion time. Now then is the volition time. What is volition time? It's time taken for the final action. Once the decision for stopping has been finalized in your brain, this intellection and emotion time, once after processing, now the decision has come ki bhai, you have to brake your car, you have to stop your vehicle. So what you are going to do is, you will apply your brakes, you will maybe bring your gears to a lower level. So this is function of hands or legs. So these are the 4 steps in which a driver, after seeing a certain situation or once getting a triggers from a certain road situation, he reacts. So this is again very important, total reaction time. So it is P plus I plus E plus V. That is the perception time, the intellection time, the emotion time, and the volition time. So it is normally, it has been calculated that a very young, very agile, and a very fit person, they will be taking minimum 0.5 seconds. A person say like me, he will be taking more than 2 seconds, or in a complex situation, as I was referring, a black cat crossing on an interview day, it may take 3 to 4 seconds in a complex situation. So now say if we can have an average of 2 seconds if we keep, so the vehicle will move for these 2 seconds to a certain distance. So distance traveled, the last line of this slide, the distance traveled during reaction time is also called the lag or the thinking distance, because once you have perceived a thing, intellection and emotion is going in your brain, and then volition time, you are reacting to certain thing, then the vehicle by this time will move. Now in this slide, again the same process has been bit simplified, or a oversimplification of that thing. See, there is a stimulus here, something or a trigger you are getting from here. So this is the perception, and then
this intellection and emotion, these are taking place inside the brain, and this is the evolution, the response you are getting. This, in short, also we can say the total reflex action. So this reflex action is having 4 different parts, and every part adds to the reflex action or the time taken in triggering a natural reflex to a certain situation. Now, distance within which motor vehicle can be stopped depends on what? Total reaction time of the driver. This is the Peave theory comes into picture over here. Speed of the vehicle and efficiency of the brakes. Now, braking efficiency, if it is 100%, the wheels are fully locked, preventing them from rotating on application of brake. 100% braking means 100% skidding also. So here comes into play a very important thing, what we call as ABS. In our all car accidents, what happens normally is if you apply the brake or fully press your brake pedal, what happens? Your front wheels, they get locked. Once the front wheels get locked, you lose control of your vehicle. The vehicle skids, and interestingly, even if your steering is in a different direction, the movement of the vehicle remains in the original direction, and the vehicle whole skids and it continues to move in the direction it was originally moving. So you are not able to maneuver, you lose control, you are not able to maneuver the vehicle the way you want, but the vehicle in its momentum moves to the initial direction where it was going, and it hits whatever say target you tried to, or a person tries to prevent or protect. So here we have this anti-lock braking system. In subsequent slides, I will be further discussing about that. So the distance within which motor vehicle can be stopped again depends upon this. Number 4 is the frictional resistance between road and the tire. And IRC, this Indian Road Congress, what I was discussing in our initial slides, I specified a design friction of coefficient of 3.5 to 0.4, 0.35 to 0.4. And gradient of the road, if any, if the gradient is on the downward side, you will be needing more distance to stop your vehicle. So the stopping distance of the vehicle is the sum of distance traveled by the vehicle during the total reaction time, known as the lag, reaction, or thinking distance. This is the Peave time. This is again very, very important thing. You must understand this thing very clearly. कि जब भी आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं, कभी भी आपने रोड पे कभी कुछ देखा और आप गाड़ी को जब रोकना चाहते हैं, तो पहला तो आ गया कि आपका पीव थ्योरी पिक्चर में आ गया. पीव थ्योरी के चक्कर में जब तक आप रिएक्ट करेंगे, या जब तक आप उसको थिंकिंग डिस्टेंस, रिएक्शन या लैग डिस्टेंस बोल दीजिए, जब तक आप थिंक करके ब्रेक मारना शुरू किए, ब्रेक तक आपका पैर दबना शुरू हुआ, तब तक का एक डिस्टेंस होता है, नंबर 1. नंबर 2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द vehicle after the application of brakes to a dead stop position, which is known as the braking distance, because 100% braking होता नहीं है. 100% braking means 100% आपका जो है स्किडिंग है. तो ब्रेकिंग का एक एफिशिएंसी होता है. तो जब आप ब्रेक मारना शुरू करेंगे, दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस इज देयर बिफोर द व्हीकल कम्स टू इट्स स्टैंड स्टिल. तो वन इज द थिंकिंग डिस्टेंस एंड वन इज द फिजिकल ब्रेकिंग डिस्टेंस. जब आप पैर ने आपने पैडल को दबाना शुरू किया, तो ये दो जब आप डिस्टेंस को देखेंगे, इस दोनों डिस्टेंस में व्हीकल काफी ट्रेवल कर जाता है और जिसको भी हिट करना है हिट भी कर लेता है. और तब आप हॉस्पिटल में जब उस आदमी से पूछते हैं कि भाई कैसे हो गया, तो बोले नहीं यार मैं तो देखा भी, देखने के बाद मुझे ब्रेक लगाना था, मैं तो जल्दी से ब्रेक लगाया, फुल पेडल भी दबा दिया मैं. लेकिन थिंकिंग डिस्टेंस में और जब आपने फुल ब्रेक लगाया तो मे भी आप व्हीकल को मैन्यूवर नहीं कर पाए. व्हीकल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन इवन इफ द व्हील्स वर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. व्हील को आपने स्टीयरिंग से मोड़ा बट वो व्हीकल मुड़ा नहीं, व्हीकल कंटिन्यू टू इन द सेम. ये वीडियो में बहुत अच्छा दिखता, बट आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क ऑफ प्लेइंग द वीडियो इन दिस वेबिनार. तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड जो थिंकिंग डिस्टेंस है, ये दो, इसी के चलते सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. और हॉस्पिटल में जितने एक्सीडेंट विक्टिम्स के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बोलते नहीं साहब मैंने देखा था, बिल्कुल मैं होश में था, मैं देखा भी, मुझे लगा कि ब्रेक मारना है, मैंने ब्रेक भी जल्दी मारा, बट स्टिल सर एक्सीडेंट हो गया. बिकॉज ये अब आगे वाले स्लाइड्स में हम लोग इसमें देखते हैं. जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे सीधा देख लेंगे, फर्स्ट लाइन को पहले पढ़ते हैं, फिर आई विल गो टू दिस कैलकुलेशन. ऑल कार्स रिक्वायर सम मिनिमम डिस्टेंस कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू अ कंप्लीट हॉल्ट वंस द ब्रेक्स आर अप्लाइड. तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? रिएक्शन डिस्टेंस, जो आपका पीव थ्योरी में आएगा. आप सोचेंगे, फिर दिमाग से प्रोसेसिंग होगा, देन फिजिकल एक्शन में आप जाएंगे, एंड देन द ब्रेकिंग. वंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ऑल्सो आपका गाड़ी इमीडिएट नहीं रुकना है. और ये दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस.
तो मैक्सिमम एक्सीडेंट क्यों होता है? बिकॉज आपका रिएक्शन और ब्रेकिंग डिस्टेंस में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था, जो आपका टारगेट था या जो आप बचाना चाहते थे, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के अंदर में आ गया। अंदर आने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हिट होगा ही होगा। जैसे एक छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेंगे कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी जा रही है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स टू 11.11 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि आपका रिएक्शन टाइम, जैसे कि मैं अपने आप को, ठीक है, आई एम नॉट दैट एजाइल नाउ, तो मेरा रिएक्शन टाइम मैंने 2 सेकंड रखा, आई एम नॉट कीपिंग इट 0.5 सेकंड्स। तो मैं 2 सेकंड का रिएक्शन टाइम रखता हूं, तो हमारा जो है, जब रिएक्ट करूंगा मैं, तो रिएक्शन टाइम में हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन डिस्टेंस हो जाएगा 22 मीटर्स का। बिकॉज ये 2 सेकंड में मैं परसीव करूंगा, दिमाग में वो प्रोसेस होगा पीव में, एंड देन जो है फाइनल एक्शन में ब्रेक दबाना शुरू करूंगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो टोटल जो हमारा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, रिएक्शन डिस्टेंस। रिएक्शन डिस्टेंस मींस 22 मीटर्स एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इट इज 8 मीटर्स। तो ये 22 प्लस 8 ये 30 मीटर्स का आ गया ऑन ए ड्राई रोड। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर में नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो यहाँ दिया हुआ है 30 मीटर्स दिया हुआ है, वो 30 मीटर कैसे आया, बाय दिस कैलकुलेशन इट कम्स टू 30 मीटर्स। और जब रोड वेट होगा तो वेट रोड में क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कमेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा, रिएक्शन टाइम मेरा सेम रहेगा। अगर मान लीजिए कि बहुत फॉगी और नहीं है, नॉर्मल वेदर कंडीशन में है, रोड गीला है सिर्फ क्योंकि बारिश हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा रिएक्शन टाइम विल बी सेम, बट यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस हमको ज्यादा लगेगा बिकॉज ऑफ ए रिड्यूस्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो होगा, जो 8 है, दैट 8 विल बिकम हियर, मान लीजिए 36 है तो दिस बिकम्स 14 हियर। दिस 8 मीटर्स ब्रेकिंग डिस्टेंस बिकम्स 14 मीटर्स। ये तो वेट में हमको ज्यादा चाहिए होगा। तो जब भी तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि रिएक्शन प्लस ब्रेकिंग, और जब वेट रोड है या वेदर खराब है तो ये और भी बढ़ जाता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के अंदर में अगर कोई भी चीज रहता है हम उसको बचा नहीं पाते हैं। नीचे में वो क्लैरिफाई भी किया हुआ है, फॉर वेट रोड्स रिएक्शन डिस्टेंस रिमेन सेम बट ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स। तो ये जो हमारा जो है, ये दिस इज, मैं वापस नहीं तो बैक स्लाइड में जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ, ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज वेरी वाइटल। ये हमारे सिर्फ सर्विस लाइफ या प्लांट लाइफ के ही काम में नहीं आना है। हम कभी गाड़ी चलाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं। व्हाट वी नीड इज, जब भी हमें ये ध्यान रखना है कि यार ये टोटल जो स्टॉपिंग रहेगा ना, ये थिंकिंग डिस्टेंस एक आएगा और उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा, एंड दिस इज ए साइजेबल डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम देखे और ब्रेक मारे और गाड़ी रुक गई, ऐसा मैजिक नहीं होता है। देयर इज ए डिस्टिंक्ट ड्राइविंग प्रोसेस, और ये प्रोसेस में अगर आप ए और बी पॉइंट को और इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपका रोड सेफ्टी वाला जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर टुडे, एंड आई अर्ज यू कि आप इसको ध्यान से देख लें एक बार। और ये चीज है जो कि हमें हेल्प करेगा अपने डे टू डे लाइफ में भी। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि दिखते के साथ और ब्रेक मारने से गाड़ी नहीं रुकती है। दिखा, दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ, पीव थ्योरी आया तो थिंकिंग डिस्टेंस चला गया। वंस आई हैव डिसाइडेड टू अप्लाई माय ब्रेक, मेरे हाथ और पैर काम करना शुरू किए, मैंने पैर से ब्रेक पेडल दबाया, वहां से मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस शुरू हुआ। तो थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों मिला के स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो मेरी गाड़ी उतने दूर बाद ही स्टॉप हो पाएगी सही ढंग से। तो इसका हमें ध्यान रखना है, और इसी बीच में सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और फिर हम आश्चर्यचकित रहते हैं कि यार ये कैसे हो गया। इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द व्हाट वाज शोन इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ ये जो ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये ट्रैफिक इंटरसेक्शन किस तरह के होते हैं, तो आप जब आप हाईवे वाली सिविल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं इसको, जब बुक्स को देखेंगे तो वहां पे आता है कि डाइवर्जिंग टॉपिक, ये जो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट, ये ट्रैफिक है, डाइवर्जिंग हो सकता है, जहां से कि आप एक स्ट्रीम में जाते हैं, देन यू बाइफरकेट। देन मर्जिंग है, 2 डिफरेंट स्ट्रीम से आके आप मेन स्ट्रीम में, तो यू आर मर्जिंग हियर। देन वीविंग है, यहाँ पे आप बेसिकली क्रॉस कर जाते हैं, वीविंग में क्रॉस करके एंड फिर आप जो है निकल जाते हैं। क्रॉसिंग में क्या है कि आप एकदम बिल्कुल 90 डिग्री में आप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एंड स्टॉपिंग या क्यूइंग भी है, आप एक के पीछे जब एक रहते हैं। तो दीज आर दी कॉन्फ्लिक्ट्स। जब भी डाइवर्जिंग होता है वहां एक्सीडेंट का खतरा है, मर्जिंग में एक्सीडेंट का खतरा है, वीविंग, क्रॉसिंग है, स्टॉपिंग और क्यूइंग में एक्सीडेंट का खतरा है। नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नॉर्मली वी कम अक्रॉस। इन्हें से जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हूँ वो लिया हूँ मैं कि 2 लेन 4 वे एनी इंटरसेक्शन और हाईवे। ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का 2 लेन 4 वे इंटरसेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए
क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट आपने पिछले स्लाइड में देखा, इसको गोल सर्कल से मार्क किया हुआ है, दिस इज क्रॉसिंग। डाइवर्जिंग कंफ्लिक्ट्स जो थे इसको ट्रायंगल से किया हुआ है, 8 डाइवर्जिंग आपके पास कंफ्लिक्ट्स हैं, एंड स्क्वायर जो है ये 8 मर्जिंग कंफ्लिक्ट्स हैं, एंड टोटल कंफ्लिक्ट पॉइंट्स कितने हो गए, दिस इज 32। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मली हमें क्या होता है, 2 लेन 4 वे जो है नॉर्मली हमें मिलता है, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो ये नॉर्मल एक इंडियन कंडीशन में वी गेट दिस रोड, वी आर यूज्ड टू दिस रोड। तो आपको ये रखना है कि यार कोई भी अगर इंटरसेक्शन यहाँ पे है तो ये 32 जगह है जहां पर कि हमें धक्का लग सकता है या कंफ्लिक्ट के पॉइंट है। 32 जगह में फिर से बता देता हूँ, 16 क्रॉसिंग वाले हैं, 8 जो है डाइवर्ज वाले हैं, और 8 जो है मर्जिंग कंफ्लिक्ट्स हैं। नेक्स्ट वाले स्लाइड में ये और भी क्लियर होगा, यहाँ पे कलर दे दिया गया है इस चीज को, मर्जिंग कंफ्लिक्ट 8, डाइवर्जिंग मर्जिंग कंफ्लिक्ट 8। मर्जिंग कंफ्लिक्ट देखिए रेड में, मतलब आप यहां से जा रहे हैं, यू आर मर्जिंग, एक व्हीकल यहां से जा रहा है इस रोड पे, और ये जो साइड वाला आदमी यहां ऐसे घुस रहा है, तो यहाँ पे जो है मर्जिंग कंफ्लिक्ट हो गया। फिर ये यहाँ पे एक मर्जिंग कंफ्लिक्ट बना, तो ऐसे टोटल 8 मर्जिंग कंफ्लिक्ट बने, टोटल 8 डाइवर्जिंग है जहां पर कि आप सिंगल स्ट्रीम से अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो टोटल जो डाइवर्ज होने वाले कंफ्लिक्ट 8 बनते हैं। एंड क्रॉसिंग में जब आप बिल्कुल सामने सामने जब आप हिट हो सकते हैं, ये 16 आता है, तो टोटल जो है 32 कंफ्लिक्ट पॉइंट्स बनते हैं। तो टोटल हमारा जो रोड डिजाइन में या ट्रैफिक कंट्रोल में यही रहता है कि हाउ टू रिड्यूस दिस कंफ्लिक्ट पॉइंट्स, बिकॉज द लेसर द कंफ्लिक्ट पॉइंट्स, हमारा लेसर द चांसेस ऑफ मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। तो मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि जो राउंड अबाउट्स हम देते हैं, जो हमारे सेल के मैक्सिमम जो टाउनशिप्स हैं, हमें राउंड अबाउट्स बहुत मिलते हैं मुड़ने के लिए, तो राउंड अबाउट का एडवांटेज क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये हो गया आपका 32 कंफ्लिक्ट पॉइंट अगेन, ठीक है ना। 2 लेन 4 वे ट्रैफिक में ये आपने ऑलरेडी देखा है कि 32 कंफ्लिक्ट पॉइंट होते हैं। इसी को अगर मैं यहाँ पे राउंड अबाउट कर देता हूँ, दिस इज राउंड अबाउट, तो दिस whole conflict points are reduced to only 8 conflict points. So from 32 we are reducing it to 8 conflict points. So here roundabouts are very safe, and so in all of our townships we see or come to see very good roundabouts. They are well decorated also, and so why they are provided? They are provided to reduce the conflict points so that our roads are safer. Now again, one buzzword which is used in this road safety is the concept of defensive driving. So what is this defensive driving? We must know, because normally you must have come across this term also. तो इसमें कोई बहुत फॉर्मूला मैथमेटिक्स नहीं है। डिफेंसिव ड्राइविंग बेसिकली जो है ना, कि जब भी हम रोड पे जाते हैं तो एंटिसिपेटिंग समथिंग विच बैड विच में हैपन और विच में टेक प्लेस ऑन द रोड विथ मी। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर इसको समझाने के लिए मैं बताऊं, जैसे कि अगर कोई मैं जा रहा हूँ रोड पे, और जो रोड के बीच में कोई डिवाइडर है, डिवाइडर पे मैं देख रहा हूँ कि एक गाय जो है वहां पे डिवाइडर पे अनमैन्ड एरिया रहता है, ग्रास है, काउ इज ग्रेजिंग ओवर देयर। तो जब मैं जाऊंगा यहाँ से और मैंने काउ को देखा है, डिफेंसिव ड्राइविंग अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं हमेशा सोचूंगा कि यार मैं तो बगल से जा रहा हूँ, एकदम डिवाइडर के बगल से ही, काउ हो सकता है कि कभी भी टर्न करके रोड पे आ जाए। तो ये मेरे काउ को देखने के साथ में ये चीज, इस सिचुएशन को परसीव करना कि इट मे सो हैपन, तो जैसे ये दिमाग में मेरे आएगा तो मेरा ड्राइविंग बिहेवियर चेंज होगा। हाउ दैट ड्राइविंग बिहेवियर विल चेंज? माई स्पीड विल कम डाउन ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या होगा, मैं जो एकदम डिवाइडर के राइट में था, आई विल गिव सम स्पेस कि अगर काउ आती भी है तो काउ विल नॉट हिट मी, मैं थोड़ा लेफ्ट ले लूंगा अपना, एंड लॉट ऑफ अदर चेंजेस विल कम इन योर ड्राइविंग बिहेवियर। तो डिफेंसिव ड्राइविंग बेसिकली होता है एंटिसिपेटिंग सिचुएशंस, फैक्टर्स दैट कैन पॉसिबली लीड टू एक्सीडेंट। आप पहले से ही फोरसी करते हैं कोई चीज एडवर्स, आप परसीव करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स इन अ डिस्टिंक्ट चेंज इन योर ड्राइविंग बिहेवियर. So this defensive driving is very, very important. अगर ये, and this is one panacea to all our driving problems. It is recognizing potential accident situations in time and adjusting them to avoid accident. Again, we are playing with word over here. मैं जो आपको बताया हूँ same चीज को, maybe by putting in different words, I am trying to say the same thing. But crux of the thing is कि you anticipate, you perceive a situation which may get adverse or which may affect you, and changing your driving behavior accordingly so that you are even if the perceived thing happens, you are not harmed or you are not hurt. So this is in crux the let's see, your what we call as a defensive driving. It is maneuvering your driving in a way that enables you to stay out of the majority of accident situations. It is a system of successful solving driving problems. Defensive driving is a professional driver's code of
code on the road. And safe driving is not a matter of luck. Again, next slide, there is a very important thing. Defensive driving, again, this is very vital. Care, courtesy, and consideration for other road users. The road is for all the road users. We need to care, we need to show courtesy, and also we need to respect other road users. जैसे छोटा एग्जांपल है, मैं जा रहा हूँ कार में, पीछे से किसी को भी जाना है, कोई है जो ज्यादा हड़बड़ी में, ही वांट्स टू ओवरटेक मी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं राइट लेन में ही चल रहा हूँ, मैं लेफ्ट में शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, और आई एम नॉट गिविंग हिम path, or I'm not, as if the road is only mine. Road equally belongs to that person also, because उसको भी रोड को यूज करने का उतना ही राइट है. तो राइट ऑफ यूज जो बोलते हैं, आरओयू, जो इट्स अ वेरी फेमस टर्म और ए कॉमन टर्म यूज्ड एवरीवेयर, तो आरओयू उसका भी है, G2 हैज राइट ऑफ यूज फॉर द रोड. तो उसके आरओयू को रिस्पेक्ट करना एक अच्छे डिफेंसिव जो ड्राइविंग कोड को मानते हैं ऐसे ड्राइवर का, वो करते हैं. किसी को और कोई कटसी भी दिखाना है कोई चीज को, जैसे आपको कभी ओवरटेक करना है, कोई सिग्नल देते हैं, जैसे आप एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई भी क्रॉस रोड में आप जाते हैं और वहां पे आप देखिए कि आपने अपने बाइक को स्लो किया, सामने वाला जो है उसने भी अपने बाइक को स्लो किया, दोनों एक दूसरे को बोल रहे कि नहीं आप पहले चले जाइए, आप बोलते नहीं आप पहले चले जाइए. वी कम अक्रॉस सच सिचुएशंस आल्सो, जो यद्यपि कम होता है ऐसा, बट वी कम अक्रॉस सच सिचुएशंस जिसमें कि तो बोथ द ड्राइवर्स आर शोइंग कर्टेसी टुवर्ड्स ईच अदर. तो हमें क्या है, कैसा लगता है, वी फील वेरी गुड. अगर हम कार में जा रहे हैं, हम भी फैमिली के साथ हैं और भी कोई है, पहले वो कहते नहीं सब आप पहले चले जाइए, हम बोलते नहीं सर आप चले जाइए पहले, तो इट गिव्स सच ए सूदिंग फीलिंग. तो ये दिस आर ऑल द वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग कोड. अलर्टनेस फॉर इलीगल एक्ट्स एंड ड्राइविंग एरर्स ऑफ अदर ड्राइवर्स. आपको खुद ही सेफ नहीं रहना है, दूसरा ड्राइवर में अगर लग रहा है कि उसमें कोई गलती हो रही है तो आप उससे भी, उसके लिए भी अलर्ट रहें. आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्रोच हिम, बट उसके गलती से आप कैसे बचना है ये भी आपका जो है डिफेंसिव ड्राइविंग कोड के अंदर अंतर्गत ही आता है. कंसर्न फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन द राइट, ये भी एक बहुत बड़ा चीज रहता है. नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो राइट था, वो कहता है नहीं आप राइट नहीं थे, आप लेफ्ट में नहीं थे, राइट में नहीं थे. एवरीवन ट्राइज टू प्रूव इन अ सर्टेन सिचुएशन दैट ही इज करेक्ट and what he is saying is right and it needs to be accepted. But अगर आपको जो है डिफेंसिव ड्राइविंग जो मानते हैं ना, उनका कंसर्न रहता है कि एक्सीडेंट नहीं होना है, हु इज राइट और हु इज रॉन्ग उनका कंसर्न नहीं रहता है. एंड नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो अच्छे ड्राइवर होते हैं जो कि डिफेंसिव कोड मानते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिग्नल्स हो गए, साइन प्रोहिबिटरी सिग्नल्स हो गए, मैंडेटरी सिग्नल्स हो गए, सिग्नल्स के बारे में भी फेयर बिट ऑफ आइडिया वो कर लेते हैं. दे think that they are responsible and they must know those signs and signals and they acquire knowledge about that. तो डिफेंसिव ड्राइविंग कोड में बेसिकली जैसे जैसे मैं एक और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि कभी बारिश के दिन में अगर आप 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से आप जा रहे हो और बहुत तेज हवा चल रही है, आप देख रहे हैं कि जो ट्री के ब्रांचेस है ना वो बिल्कुल स्वे कर रहे हैं. तो जब आप स्वे कर रहे हैं तो डिफेंसिव ड्राइविंग के मोड में आप रहेंगे ना, यू विल ऑलवेज प्रेज्यूम कि यार ये मैं पेड़ के रेंज से थोड़ा बाहर चलूं, पता नहीं कब कोई वहां से डाल टूट के एकदम फ्लाई करके मेरे कार के विंडस्क्रीन पे आके गिर जाए. तो ये जैसे ये थॉट आपके पास आता है, बाद बाकी आपका होल ड्राइविंग पैटर्न चेंज हो जाता है. आप राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, यू ट्राई टू मूव बिट अवे फ्रॉम दैट, या आप थोड़ा वॉचफुल हो जाते हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो यू स्टार्ट थिंकिंग डिफेंसिवली. तो डिफेंसिव ड्राइविंग जो है इसका कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग एम्पिरिकली बट आई कैन प्रोजेक्ट ओवर हियर. इट्स बेसिकली ए प्रोसेस, इट्स ए कोड. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ जो आप सुन रहे हैं आपके लिए ही नहीं है, दिस इज सच ए लाइफ सेविंग एंड ए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और ए बेसिक क्वालिटी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू फर्दर शेयर इट with your wives, with your अगर आपके बच्चे बड़े हैं वो चलाते हैं उनके साथ में, तो so that we nurture and we develop safe drivers so that overall road safety gets improved. नो, ये रोड सेफ्टी में ये क्विज में भी ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जाता है कि ये 4 E's है. नॉर्मली जो सेफ्टी का जो पुराने हम लोग सेफ्टी वाले लोग हैं ना, हम लोग सेफ्टी में 3 E's बोलते हैं. ये जो हमारे डॉक्टर हेनरिच थे उनका ये दिया हुआ है. हेनरिच साहब का जो फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी उन्हें कहते हैं, वो बोलते थे कि जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल होना चाहिए, आपका इन्फोर्समेंट होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए. ये 3 E's करके बहुत पॉपुलर था पहले से.
अभी जो रोड सेफ्टी के संदर्भ में जब बात करते हैं तो इमरजेंसी केयर इज ऑल्सो ए बिग थिंग विच हैज कम अप नाउ. सो 4 E's, जब भी आप मॉर्थ के किसी भी इंपॉर्टेंट रोड सेफ्टी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, दे ऑलवेज टॉक ऑफ दिस 4 E's. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में चारों ईज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन ऑल दिस 4 E's. जब इंजीनियरिंग की बात होती है यहाँ पे ना, तो इंजीनियरिंग में जैसे मैं बता रहा था, रोड इंजीनियरिंग तो हो ही गया कि रोड में आपके पास जहाँ पे भी रोड टर्न है पहले से आप एडवांस में कर दे, वहाँ पेंट लगा दे, फ्लोरेसेंट पेंट्स रहते हैं या रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगाते हैं, पहले से वार्निंग सिग्नल देते हैं कि शार्प बेंड अहेड. उसके बाद आप क्या है कि साइड में जो है ना वो क्रैश गार्ड्स भी आप लगा देते हैं, सो दैट योर व्हीकल डजंट मूव्स आउट ऑफ द रोड. साइड में आप गार्ड्स लगा देते हैं वहाँ पे. सिमिलरली व्हीकल इंजीनियरिंग में भी बहुत चीज हो गया है अभी. व्हीकल का सेफ्टी के लिए आप देखेंगे कि इन कमिंग डेज आपका जो अभी हम लोग क्या बोलते हैं ना, कोई भी आप व्हीकल खरीदने जाते हैं नई गाड़ी को, तो वो एक ही व्हीकल का वो 3-4 वेरिएंट रख देते हैं. यू नेम ए कार. आप मान लीजिए अगर मैं सबसे मोस्ट पॉपुलर अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये मारुति की, अगर किसी कार की अगर मान लीजिए डिजायर की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे वो LXI, VXI, ZXI. अब और भी किसी में आप अगर होंडा में चले जाते हैं तो उनका कुछ अलग नाम है उनका, ZX, VX, कुछ कुछ नाम करके वो निकालते हैं. एक ही मॉडल में 4-5 वेरिएंट है. एंड जैसे जैसे आप दाम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या रहता है, गैजेट्स बढ़ते हैं एंड सेफ्टी फीचर्स बढ़ता है. पर अभी भी जो है ये इन कमिंग डेज ये जो गवर्नमेंट का जो रूल रहेगा कि आपका जो बेस मॉडल भी रहेगा उसमें भी सेफ्टी फीचर्स जो है कॉमन रहेंगे, वो उसके बिना नो व्हीकल विल बी रोल्ड आउट. तो ये इंजीनियरिंग में इट्स नॉट ओनली अबाउट रोड, इट्स ऑल्सो अबाउट द व्हीकल, कि व्हीकल में क्या रहेगा. जैसे कि अभी जो मैं कमिंग बैक टू द जो पहला जो क्वेश्चन मैंने कर रहा था, जो कि बाइक में हम लोग डिस्क ब्रेक है, आप देखेंगे कि हमेशा फ्रंट व्हील में ही रहता है, रियर में नहीं रहता है. अगर सिंगल डिस्क ब्रेक है, अगर दो है तो एक फ्रंट में एक रियर में, दोनों में रहेगा. तो इसका अभी जो ये देखा जा रहा है कि हम लोग पुराने जो लोग हैं वो सोचते थे कि भाई सामने का ब्रेक को नहीं मारना है. साइकिल भी जब हम सीख रहे थे तो हमें बताया जाता था कि सामने के ब्रेक को हाथ नहीं लगाना है. कुछ कुछ के तो जो बहुत ही मतलब केयरिंग पेरेंट्स टाइप के रहते थे वो सामने के ब्रेक को खुलवा भी देते थे साइकिल मिस्त्री से कि भाई सामने का ब्रेक ही हटा दो, ब्रेक मीन्स पीछे का ही मारना है. तो ये जब साइकिल वाले लोग जब बाइक में ग्रेजुएट किए तो उनका वो थॉट प्रोसेस वही रह गया, सेम थिंकिंग से बाइक भी वो चलाते थे. whereas द कंसेप्ट इज नाउ दैट आपका जो ब्रेकिंग होता है टू व्हीलर में, 80% ऑफ द ब्रेकिंग जो है वो फ्रंट व्हील से होता है, एंड ओनली 20% ऑफ द ब्रेकिंग जो है वो आपका रियर व्हील से होता है. तो अगर व्हीकल को प्रॉपरली अगर बाइक को स्टॉप करना है तो 80% जो ब्रेकिंग आपको मिलेगा वो मिलेगा फ्रंट व्हील से. तो अगर हमें बाइक में अगर एक ही ये डिस्क ब्रेक देना है तो नेचुरली हम फ्रंट में देंगे, बिकॉज दैट इज द व्हील विच इज गोइंग टू स्टॉप माई बाइक. और पर हम पुराना क्या कंसेप्ट था हमारा कि नहीं, रियर व्हील में ही. अभी भी हम लोग जो पुराने वाले लोग हैं पहले पीछे वाले चक्के में ही ब्रेक मारते हैं मान. और अभी जो और इंजीनियरिंग इसमें क्या आ रहा है, मैं अभी डिवाइस जो आपको बता देता हूँ इसमें व्हाट द चेंज नाउ इज, सिंस एक आदमी तो कैलिब्रेट नहीं कर पाएगा कि मैं 70% या 80% पीछे वाले सामने चक्का में मारूं और 20 to 30 पीछे वाले चक्का में ब्रेक, वो कैसे बेचारा हिसाब करेगा, वो उसका तो हाथ पैर एक साथ जो चलेगा जो जहां जैसा ब्रेक लगा. तो न्यू जो व्हीकल डिजाइन है ना, न्यू जो टू व्हीलर्स है उसमें ये रहेगा अभी कि जो जो ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है वो इंटीग्रेटेड होकर आ रहा है. आप कहीं पे भी एक जगह दबाएंगे, ब्रेक का ट्रांसमिशन ऐसे ही रहेगा कि 70 to 80% विल गो इन द फ्रंट व्हील एंड आपका रिमेनिंग जो रहेगा 20 to 30 विल गो इन द रियर व्हील. तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में रहेगा कि दैट कैलिब्रेशन यू नीड नॉट हैव टू डू, और वो आप एक ब्रेक मारेंगे और वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन खुद अपने आप ऑटोमेटिकली वो ले लेगा. तो दिस इज स्मॉल थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड. अभी जो आप देख रहे हैं कि जो एयरबैग्स की बात हो रही है कार्स में, ये दिस इज वन ऑफ द व्हीकुलर जो इंजीनियरिंग की बात हो रही है कि अभी ऐसा भी दिन आएगा कि जिसमें देयर नो कार्स विल बी रोल्ड आउट विदाउट दिस आपका एयरबैग रहना ही रहना है. तो ये चीजें जो है ये इंजीनियरिंग में धीरे धीरे, और इन्फोर्समेंट तो हो गया कि अभी जो है आप कैमरा आ गया, स्पीड मॉनिटरिंग के लिए आ गया, जो आपका ऑटोमेटिक जो है नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम आ गया, चालान्स घर पे आ जा रहे हैं. एंड एजुकेशन में ये हो रहा है कि रोड सेफ्टी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इसको एक तो है कि स्कूल्स में कॉलेजेस में आप रोड सेफ्टी के ऊपर में बच्चों को आप देखेंगे कि क्लास KG या क्लास 1 के बच्चे के बुक में भी रहता है रोड सेफ्टी कि आप लेफ्ट साइड में चलो, जेब्रा पे क्रॉस करो. ये हम बच्चे को क्लास 1 से या KG क्लास से सिखा रहे हैं ये चीज. तो ये एजुकेशन में मैंडेटरीली इसको ऐड किया गया है. एंड लेटर ऑन अभी एजुकेशन में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है रोड सेफ्टी पे कि ऐसे इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन डेवलप किया जाएगा कि यू विल हैव रोड सेफ्टी इंजीनियर्स
or bachelor or this BSc in road engineering or on road safety, बीटेक कोर्सेज होंगे, एडवांस कोर्सेज डेडिकेटेड टू रोड सेफ्टी रहेंगे, गवर्नमेंट का ऐसा भी सोच है। इमरजेंसी केयर में अभी क्या हो रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट का सोच है कि आप देखेंगे कि इंटीग्रेटेड इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। नॉर्मली रोड एक्सीडेंट केसेस में क्या होता है कि जो फर्स्ट 1 आवर होता है, ये पैरामेडिक्स में भी जो लोग पैरामेडिक्स का जिनके पास ट्रेनिंग होगा या डॉक्टर्स कैन विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, हम फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर बोलते हैं कि कभी भी जब एक्सीडेंट हो गया, एक पर्सन इज इंजर्ड, तो दैट फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर एंड आवर इंटरवेंशंस ड्यूरिंग दैट फर्स्ट आवर विल डिसाइड whether the that victim is going to survive or not. So his survival totally depends on the what intervention we choose and how we choose to intervene during that golden hour. So it's a very very critical. तो अभी इमरजेंसी केयर में क्या है, गवर्नमेंट के अब का अभी जो है मोटा मोटी स्टार्ट भी हुआ है। ये इमरजेंसी केयर में इनका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आया है, ऐप बेस्ड सिस्टम ये कर दिए हैं। जितने भी हाईवेज पे सेलेक्ट सेक्शंस में भी चल रहा है ये, इनका वो ऐप में कोई भी एक्सीडेंट हुआ और वहां पे जैसे वो एंट्री करेंगे तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल रहेगा वहां पे अलर्ट चला जाएगा और पेशेंट का क्या कंडीशन है, इंक्लूडिंग उसका फोटो व्हाट्सएप, सो दैट वहां पे जो इमरजेंसी केयर देना है दे आर रेडी विद दोस थिंग्स। और जो फिर सेम इज कनेक्टेड टू एम्बुलेंस एंड सेम इज कनेक्टेड टू फायर ब्रिगेड। अगर एक्सीडेंट क्रैश ऐसा हुआ कि फायर भी लग गई है तो इमीडिएटली फायर रिस्पॉन्डर के पास कॉल जाएगा एंड दे विल स्टार्ट मूविंग। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम ये अपने आप एक सीमलेसली एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें हो, इसके लिए भी जो है लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन और मे बी इन स्मॉल सिटीज लाइक आवर्स आल्सो दोस थिंग्स विल कम इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी आप हाईवे पे जब भी जाते होंगे आपको कभी कभी सरप्राइज मिलता होगा। वो सरप्राइज क्या है, अचानक आप देखेंगे यार मेरे बगल से गाड़ी चला गया, वो जबकि गाड़ी आपके कभी भी व्यू में था ही नहीं। यू आर टोटली ऑब्लिवियस अबाउट दैट व्हीकल एंड सडनली यू आर सरप्राइज्ड or you are shocked rather that a speeding vehicle has just crossed you बिकॉज ये ब्लाइंड जोन का कंसेप्ट है जो हमें दिमाग में रखना है। देन वी आर सरप्राइज कि यार मैं तो अभी मिरर देख रहा था, क्यों मुझे वो गाड़ी दिखा नहीं, कहां से गाड़ी घुस गई वो। तो ये जो ब्लाइंड जोन का कंसेप्ट है ना, अगर आप सिर्फ अगर आप सिर्फ जो है कार के अंदर के सेंट्रल मिरर से आप देखते हैं तो ये क्लियर व्यू यहाँ तक दिखते हैं और ये बड़े बड़े ब्लाइंड जोन्स हो जाते हैं। फिर अगर आप साइड मिरर से देखते हैं, अगर साइड मिरर अगर फुल्ली अगर आउटवर्ड एक्सटेंडेड नहीं है तो भी आपको ये ब्लाइंड जोन मिलता है। जैसे ये देखिए, ये जो ब्लाइंड जोन में जो गाड़ी जाएगी आपको नहीं दिखेगी। और ये जो थोड़ा बेटर ओरिएंटेशन है, यहाँ पे ब्लाइंड जोन को हम लोग क्या है बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे कि जीरो ब्लाइंड जोन हो जाए, बट इट इज नैरोड एंड इट इज नैरोड कि मोटा मोटी आपको जो व्हीकल है वो यू विल बी एबल टू सी दैट व्हीकल एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर ड्राइविंग ऑल्सो। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं ना तो ऐसा नहीं होना है कि आपका जो रियर व्यू मिरर, साइड वाले मिरर्स जो है वो कार को ही देख रहे हैं आपके। यू नीड टू एडजस्ट देम सो दैट आपको जो है ब्लाइंड जोन बिल्कुल कम हो। और ये नॉर्मली रहता है कि जब आप आउटवर्ड फुल्ली एक्सटेंड कर देते हैं और मिरर में देखते वक्त में आप बीच बीच में सेंट्रल मिरर को भी देखते रहेंगे तो आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा पीछे का एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज। क्योंकि लेन चेंज में नॉर्मली ये इशू हो सकता है कि आपको पता नहीं है पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, एंड यू डिसाइड कि मैं थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करूंगा और पता चला कि जो साइड से गाड़ी आ रही है और वहां से साइड क्रैश हो गया। So to avoid this, we need to be very careful of this thing which is called as blind zone, and blind zone is very natural in the driving and we need to be extra careful for that. Normally क्या है कि we are ignorant about this thing कि यार हम तो देख ही रहे हैं ग्लास से, शीशा से तो सब कुछ दिख रहा है हमको, तो ब्लाइंड जोन कहाँ से आएगा। बट नो, आप इसको ठीक कर लेना है। ब्लाइंड जोन होते हैं और ब्लाइंड जोन के अंदर की गाड़ियां आपको नहीं दिखेंगी, तो आपको हमेशा वॉचफुल रहना है। साइड में, दोनों साइड में कोई अगर 3 लेन या 4 लेन हाईवे में आप जा रहे हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में चारों गाड़ियां जा रही हैं, you need to be very careful about vehicles in your side by side lanes also। ठीक है, अभी एक ये हेडर मैट्रिक्स की बात थी। अब मैं थोड़ा सा ये अगेन आपके गवर्नमेंट वाले साइट पे ये देते हैं कि प्री क्रैश है, क्रैश है एंड पोस्ट क्रैश है। मैं इसको ज्यादा और डिस्कस नहीं करूंगा। ये already I have discussed. This is something very important. Front brakes provide more stopping power than the rear ones. Up to 80% of two-wheelers braking power is concentrated in the front end. और ये जो प्लांट से करना, हम लोग अभी जो भी बात कर रहे थे ना, बट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इसका जो एप्लीकेशन है वो एक
काफी ब्रॉड है और यूनिवर्सल है। हम जो भी चीज सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें प्लांट स्पेसिफिक में ही काम करना है। बट नाउ कमिंग टू अपने प्लांट सिनेरियोज में, देर आर सर्टेन गुड प्रैक्टिसेस और सर्टेन इंटरवेंशंस जो कि हर प्लांट कहीं ना कुछ करके बैठा हुआ है। Though no plant is in a state where things are very okay, but what can be done is enforcement of speed limits है, consequence management की कोई भाई हम NPR से आपका नंबर प्लेट रिकॉग्निशन होगा एंड नंबर प्लेट में जो भी हमको गाड़ी वायलेट करते हुए मिलेगी स्पीड को, उसका डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा। either that person will be suspended or a penalty will be deducted from his pay slip or something of that sort. यूज ऑफ पोर्टेबल फिक्स्ड एज वेल एज एनपीआर कैमराज, ये जो स्पेशली सेफ्टी वाले जो डिपार्टमेंट वाले जो करते हैं या सेफ्टी कमिटी के लोग जो सेफ्टी डिपार्टमेंट या जो हमारे जो सेफ्टी कमिटीज है प्लान में, कभी कभी ज्वाइंट कैंपेन्स भी होते हैं, तो दे शुड यूज दीज थिंग्स। अदरवाइज लोग क्या है कि आर्गुमेंट करने लगते हैं कि भाई नहीं मैं तो ठीक ही था, मेरा स्पीडोमीटर तो 40 दिखा रहा था या 30 दिखा रहा था, आप कह रहे हैं मैं हाई स्पीड में था, आई वाज नॉट इन हाई स्पीड। तो टू obviate such type of things, what we need to do is use this gadgets। जो हेवी व्हीकल्स हैं हम स्पीड गवर्नर्स लगा सकते हैं, बहुत प्लांट में लगाया हुआ है। जीपीएस डिवाइसेस बहुत सारे प्लांट्स में, इंक्लूडिंग हमारे प्लांट में भी जीपीएस डिवाइसेस भी इंस्टॉल्ड हैं। इससे क्या है, दो फायदे हैं। एक तो डोमेन पता चलता है कि वो व्हीकल कहाँ मूव कर रही थी, और एक स्पीड का भी जो है आपके मोबाइल में भी ये डाटा आ जाता है कि सपोज कोई डंपर है तो वो डोमेन डंपर को अलॉट किया गया था, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, सर्टेन डोमेन में मूव करना है। पता चला डोमेन ऑपरेटर जो है बिकॉज ऑफ सम अदर वेस्टेड इंटरेस्ट ही हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज डोमेन एंड ही ओवर स्पीडेड ऑल्सो। तो डोमेन से भटकना एज वेल एज ओवर स्पीड करना, दोनों चीजें जो है वो जीपीएस डिवाइस जो है आपको मोबाइल पे, या इट कैन बी प्रिंट आउट कैन बी टेकन, और रियल टाइम आप उसको मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट कैन बी अटैच्ड, और कॉन्सिक्वेंस कैन बी अटैच्ड टू दैट डेविएशन। और जो बहुत सारे प्लांट्स में है कि डेडिकेटेड हेवी व्हीकल्स का कॉरिडोर ही अलग है, पर चूंकि अपने प्लांट्स काफी कंजेस्टेड हैं, और तो इसमें ये एक दिक्कत है कि हम कॉरिडोर नहीं बना पाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे जो इशू आ रही है सभी सेल प्लांट्स में, कि ये हमारे पास जो नॉर्मल 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिलिस्ट एंड हमारा हेवी व्हीकल जो है सेम रोड को यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि हमारे जो प्लांट्स हैं मोटा मोटी, जैसे दुर्गापुर की बात अगर मैं करूँ तो इट्स अ कंजेस्टेड प्लांट, और बहुत जगह नहीं है कि आप रोड को वाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज सर्विस लाइन्स इतनी सारी जा रही हैं कि इट्स प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल टू फर्दर वाइडन द रोड्स। तो इसमें ये बात रहती है कि भाई जब हम ये डंपर्स को हटा दें, तो ये जो अभी जो पॉपुलर डंपर्स हैं वो 30 टन वाले डंपर रहते हैं। तो अभी जब ये बीएमएल वालों से बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि साहब ये 30 टन डंपर का तो अब क्रेजी खत्म हो गया है, अब जो नए डंपर आ रहे हैं वो 50 टन के डंपर आ रहे हैं। तो मतलब अब ये 30 टन का डंपर नहीं रहेगा, 50 टन के डंपर्स आएंगे, वो तो पूरा रोड को कवर करके जाएगा। तो आइदर वी फॉर ये मटेरियल जो हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट है, वी नीड टू थिंक ऑफ सम स्ट्रैटेजी हियर, बिकॉज ये काफी अलार्मिंग है कि फ्यूचर वाले डंपर्स और भी बड़े होंगे, रोड्स का विड्थ हमारा सेम रहेगा, तो दे आर गोइंग टू पोज ए ग्रेटर चैलेंज इन फ्यूचर। वाइडनिंग ऑफ क्रॉस रोड, जहाँ पे हमारे पास प्लान में क्या कि पुराने जो जहाँ पे भी क्रॉस रोड्स हैं, कहीं मुड़ने की जगह है, वो एकदम से टर्निंग ठीक नहीं है, तो टर्निंग रेडियस हम उतना नहीं दे पाते हैं। तो इसमें एक फ्रेश लुक करके, जैसे हम लोगों ने डीएसपी में वो चीज किया है अभी, आफ्टर ए फेटल एक्सीडेंट उसको किया, बट वी हैव वाइडनड ऑलमोस्ट ऑल ओवर क्रॉस रोड्स। और भी बहुत जगह है जो करना है, या जो ब्लाइंड स्पॉट्स कॉर्नर्स थे उनको भी एलिमिनेट किया गया है। तो दिस इज समथिंग, जो भी हम जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, अगर कोई अपने डिपार्टमेंट्स में यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे हमारा रोड है जहाँ पे ब्लाइंड कॉर्नर हो जाता है, एक्सीडेंट हो सकती है, और वहाँ पे अगर स्कोप है तो दोज रोड्स कैन बी वाइडन, स्पेशली द टर्निंग पार्ट्स। जेब्रा क्रॉसिंग का कंसेप्ट प्लांट्स में नहीं है, पेडेस्ट्रियन वॉकवे का भी कंसेप्ट नहीं है। तो वी कैन हैव जहाँ पर कि लोग नॉर्मली कोई जगह से बस स्टैंड जा रहे हैं, या ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोगों को क्रॉस करना पड़ रहा है मेन रोड को, तो वी कैन थिंक ऑफ कोई ट्रैफिक सिग्नल दे के और जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ कर दिए। ट्रैफिक लाइट सम ऑफ द प्लांट्स हैव इंस्टॉल्ड, पर अगेन इफेक्टिवनेस जो है वो इशू है, शिफ्ट इन टाइम्स में पीपल आर नॉट फॉलोइंग दोज थिंग्स। बट अगेन दिस टूल स्लोली अगर हम करेंगे एंड वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल्सो, तो ये जो अपना ट्रैफिक लाइट वाला जो है, इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग ट्रैफिक जो है रोड्स पे। ट्रैफिक मार्शल्स जो हो गया, दिस इज अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं बेसिकली, जिनको एक्सपीरियंस रहता है ट्रैफिक पे, तो थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट ये ऑपरेट किया जाता है। तो दे आर इफेक्टिव बिकॉज ये इसमें भी, लेकिन पर पीक शिफ्ट आवर्स में थोड़ा तो इशू रहता है, यहाँ पे भी लोग इनकी बात भी नहीं सुनते हैं। बट दिस इज ऑल्सो वन गुड थिंग फॉर दिस आपका रेगुलर रेगुलेशन ऑन रोड्स। restricted timing all plants are following, and dedicated parking lots also, ये मोटा मोटी हर जगह ही है, and it is being followed also. So these are some of the good practices on road safety हो सकता है। Now I will be shifting to the
सेकेंड टॉपिक वो जो हमारा रेल सेफ्टी है। रेल सेफ्टी में जो भी बात करेंगे, स्लाइड्स ज़्यादा नहीं है, इसीलिए चूंकि वी आर गेटिंग बिट लेट ऑल्सो, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ बाय मैक्सिमम 5 minutes past 5। सो इसमें जो स्टैंडर्ड्स हमें गवर्न करती है ना, वो एक सेफ्टी कोड है IS 8182, उसका नाम ही है प्लांट रेलवेज या सेफ्टी इन प्लांट रेलवेज करके है। फैक्ट्रीज रूल्स हो गए हर स्टेट के, आप जिस स्टेट में भी सुन रहे हैं आपके फैक्ट्री रूल्स में भी प्लांट रेलवेज, बिकॉज प्लांट रेलवेज आर द थिंग्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर इंडियन रेलवे एक्ट। तो हर फैक्ट्री रूल्स जो है प्लांट रेलवेज को डिस्टिंक्टली कवर करती है। देन वी हैव 1 IPS स्टैंडर्ड, 2 IPS स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, लोको ऑपरेशन के लिए एंड दिस हैंडलिंग ऑफ लिक्विड मेटल है। एंड दिस लास्ट वन विच हैज बीन एडेड, द न्यूएस्ट वन इज द सेफ्टी गाइडलाइंस, SG बोलते हैं, पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसका नाम है लोको ऑपरेशन स्टील सेफ्टी गाइडलाइंस, गाइडलाइन नंबर 25। तो मैं जो भी बात करूंगा अभी इन्हीं स्टैंडर्ड से जो खास खास चीजें हैं, बिकॉज आप यू आर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं दे आर नॉट नेसेसरली फ्रॉम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो उनको बहुत डिटेल्स में भी मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं आई विल बी टचिंग अपॉन कि क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि जिनका मूवमेंट मोटा मोटी दे टच अपॉन ऑल द डिपार्टमेंट्स, कहीं ना कहीं हर जगह आयरन जोन में है उनका मूवमेंट, वो जिससे ब्लास्ट फर्नेस जाएंगे, वो कोई सिंटर प्लांट में जाएंगे, वो उनका मूवमेंट होगा, उनका SMS में मूवमेंट है, मिल्स में उनका मूवमेंट है, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट तो मूवमेंट है ही उनका। तो तो वो मैं खास खास चीजें जो कि एज ए DSO है, अगर आप आज एज HOD हैं, अगर आप HOS हैं और एनी पर्सन आप चाहते हैं कि मैं सेफ्टी में कुछ करूं, तो यू विल बी गेटिंग फ्यू टेक अवेज जो कि आप लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं पढ़ के उसको आपको बहुत ही सरल और जल्दी इसको समझाने का कोशिश करूंगा। ये स्लाइड में कुछ नहीं है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो भी वैगन है ना, कोई भी वैगन या लोको है, वो आपका जो क्रॉसिंग रहता है, जो भी रेल रोड क्रॉसिंग है, उसको जो है 3 मीटर्स के अंदर नहीं आना है। मिनिमम क्रॉसिंग से आपको 3 मीटर्स का क्लियरेंस देना है। ये मैं वेस्ट बंगाल फैक्ट्री रूल से इसको लिया हूं, बट अगेन जो सबके लिए जो एप्लीकेबल है, हमारा जो स्टील सेफ्टी गाइडलाइंस जो है, व्हाट दे स्टेट 8 to 10 फीट। तो नॉर्मली आप देखेंगे 3 मीटर्स कम्स टू अराउंड वही आपका 10 फीट के आसपास आ गया। और कभी भी ये फिगर्स के बारे में एक चीज मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं कि कोई भी रूल स्टैट्यूट का फिगर देखेंगे, दे मे नॉट बी सीधा सेम, तो मतलब एकदम न्यूमेरिकली दे विल नॉट बी सेम, बट आप देखेंगे कि जो आपका वेरिएंस है, वेरिएंस भी ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा वेरिएंस नहीं रहता है। कहीं पे जो चीज 5 है, कहीं पे वो 4.5 मिलेगा, कहीं पे आपको वो 5.5 मिल जाएगा। बट इट इज नॉट कि कहीं पे 4 है तो कहीं पे 12 है, ये कहीं नहीं मिलता है, किसी भी स्टैट्यूट में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो वेस्ट बंगाल फैक्ट्री रूल्स में 3 मीटर्स की बात हो रही है, दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल टू all of you who are linked into in this program. So 8 to 10 फीट का क्लियरेंस आपको रखना ही रखना है। दिस इज एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील सेफ्टी गाइडलाइंस नंबर 25। नो लोकोमोटिव वैगन और रोलिंग स्टॉक, तो ये कभी भी आपके शॉप में पता चला कि कोई लोको या कोई वैगन को पार्क कर दिया है ना, अगर आप देखेंगे कि यार वो 10 फीट से कम है, तो आप बिल्कुल उसको बोलिए कि भाई इसको तुम हटाओ, इसको हमको क्लियरेंस दो, हमारा ब्लाइंड कॉर्नर हो जाएगा, या एक्सीडेंटल रोल अगर होगा तो इट विल हिट समबडी, तुमका ये क्लियरेंस तुम्हारा कम है, तुम इसको मिनिमम 10 फीट पे लेके जाओ। तो ये पर्पस आपको बताने का यही है कि यू कैन एक्ट, ये जो लर्निंग होगा यू कैन ट्रांसलेट इनटू सम एक्शन। ये जो हाईलाइटेड जो ब्लू वाले पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन पे ही ज्यादा ध्यान दूंगा अभी। नो लोकोमोटिव वैगन और रोलिंग स्टॉक शैल बी केप्ट स्टैंडिंग अनलेस इट ब्रेक्स आर फर्मली अप्लाइड एंड वेयर इट इज ऑन ए ग्रेडियंट विदाउट सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड स्कॉचेस। कोई भी आप देखिए, हम लोगों का क्या है ना, कोई भी हम जब ये वैगन है कहीं पे हम लोग अगर वैगन को प्लेस कर दिए, या ट्रेन ऑफ वैगन मान लीजिए 5 वैगन 6 वैगन, ये पूरी रेक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो व्हाट वी डू इज कहीं पे हम पार्क कर दिए, लेकिन हम स्कॉच ब्लॉक उसमें डालते ही नहीं। वो क्या करेंगे, बहुत एट बेस्ट हमें बहुत अगर सेफ्टी दिमाग में रहेगा तो हम कुछ भी जो पास में बगल में कुछ पत्थर मिला, कोई चिप्स मिला, चक्के के नीचे डाल के छोड़ देते हैं। तो दिस इज अ वेरी अनसेफ प्रैक्टिस एंड ये स्टैट्यूटरी भी ये चीज अलाउड नहीं है। तो हमें स्कॉच ब्लॉक डालना ही है। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आएगा कि हमें स्कॉच ब्लॉक को कितना रखना है लोगों में और कैसे डालना है, थोड़ा सा मैं फर्दर इस पे और आगे बात करूंगा। और कभी भी जब लोको क्रेन को मूव करना है ना, ये लास्ट लाइन में आप देखेंगे तो लोको क्रेन शुड मूव, ये जो उसका जिब रहता है ना, इसको कंप्लीटली लोअर्ड होना चाहिए और इन लाइन विद ट्रैक। ऐसा नहीं कि ट्रैक से फॉर अवे जाएगा तो हर चीज को धक्का मारते हुए जाएगा, तो उसका जो बूम का जो डायरेक्शन है इट हैज टू बी इन लाइन विद द ट्रैक, ये तो है ही है, बिकॉज अगर हमारा बूम डायरेक्शन अगर से 90 डिग्री ऑफ द ट्रैक हो गया तो इट मे नॉट मूव, इट विल हिट लॉट ऑफ थिंग्स।
और बट बूम को जो है, ये जो जिब है हमारा वो एकदम लोअर पोजीशन में होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। और जब भी हमें कोई लोको या वैगन को मूव करना है ना, तो ये शंटिंग जमादार इसे, अभी तक मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, हेडिंग में भी आप देखेंगे मैं फैक्ट्री रूल्स, वेस्ट बंगाल फैक्ट्री रूल्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे शंटिंग पोर्टर नहीं बोल के एक वर्ड यूज किया गया है, ये ब्रिटिश वालों से लिया गया है, ये जमादार का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो शंटिंग जमादार, आप इसको शंटिंग पोर्टर ले लें, शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट नो पर्सन इज अंडर और इन बिटवीन और इन फ्रंट ऑफ द लोको और वैगन। जब भी शंटिंग पोर्टर अगर जो आपको लोको ऑपरेटर को जब ऑथराइज करेगा कि आप मूव कीजिए, तो उसको पहले वो फिजिकली इंश्योर करना है कि कोई भी जो लोको के सामने या वैगन के बीच में कोई नहीं है। एक राउंड देके वो पहले खुद को असर्टेन करेगा, देन ओनली वो लोको ऑपरेटर को बोलेगा लोको को मूव करने के लिए। और ये जो ट्रैक्स है ना, ट्रैक्स एंड विसिनिटी शुड नॉट हैव लेस देन 10 लक्स का इल्यूमिनेशन, ये वेस्ट बंगाल फैक्ट्री रूल्स में बोल रहा है। पर अभी जो हम लोग रोड्स की भी बात करते हैं ना, हमारे पास अभी जो स्टील सेफ्टी गाइडलाइंस में आप देखेंगे इल्यूमिनेशन का भी एक न्यू स्टैंडर्ड भी है गॉड। तो वहां पे भी आप देखेंगे तो वो रोड्स पे या जो ट्रैफिक यार्ड्स है ना, वहां पे वो 30 लक्स मैक्सिमम की बात होती है, 10 लक्स का वहां भी बात हो रहा है। तो इट इज मिनिमम, आप यू टारगेट फॉर 20 लक्स अगर करते हैं, तो पूरे ऑल अराउंड द ट्रैक अगर 20 लक्स का इल्यूमिनेशन होता है, देन इट इज वेरी गुड। और ये जो स्पीड की बात हो रही है, तो कोई भी जो लोको या ट्रेन जो है ना प्लांट के अंदर में जो है, ये 7 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चलेगी। ये कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड में ये 10 किलोमीटर पर आवर भी दिया हुआ है। एंड व्हेन द लोको इज कैरिंग आपका लिक्विड मेटल को लेके जब जाते हैं, ये जब लैडल्स को लेके जाते हैं, देन द स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये याद कर ले आप, 7 अगर 5 याद रखें जबकि वो लिक्विड मेटल के लोड को लेके जा रही है, या जब शॉप के अंदर जब एंट्री हो रहा है, मान लीजिए कि अगर कहीं पे आपके पास अगर कोई टॉप पोरिंग हो रहा है, अगर इनगट्स को लेके जाना है वहां से, या कोई अगर आप मिल्स के अंदर घुसा रहे हैं फॉर टेकिंग अवे सम आपका फिनिश प्रोडक्ट को थ्रू सीएम, और आपके ऑर्डर को अगर आप सर्विस कर रहे हैं, तो इन सच सच केसेस आपको क्या करना है कि शॉप के अंदर जब भी घुसाना है तो 5 किलोमीटर इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, उससे ज्यादा का स्पीड नहीं घुसना चाहिए। लोको टू बी प्लेस्ड एट सेफ डिस्टेंस 6 मीटर्स व्हाइल पोरिंग ऑफ मेटल। अब यहाँ से जो अपने आईपीएसएस और स्टील सेफ्टी गाइडलाइंस के आगे रेगुलेशंस जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, पहले वाले सिर्फ वेस्ट बंगाल में चलते, ये सबके लिए है। तो ये अगर कोई ब्लास्ट फर्नेस का है या कोई एसएमएस में है, तो जब भी आप देख लें कि भाई जो लोको है वो 6 मीटर के डिस्टेंस में कम से कम सेफ डिस्टेंस में रहे। फ्री बोर्ड जो होता है, जो हम लैडल के ऊपर में कितना ओपनिंग रखते हैं, कितना फ्री स्पेस रख देते हैं, उसी को फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो फॉर ब्लास्ट फर्नेस ये हॉट मेटल के लिए जो है, ये 250 का आपको फ्री बोर्ड रखना है। 250 का जब आप फ्री बोर्ड रखते हैं, तो वो जब भी आप ट्रैक में, तो क्या है कि बहुत ही इवन ट्रैक नहीं रहता, अंडुलेशंस थोड़ा रहता ही है, तो उसमें जब आपका जो जर्क लगता है ना, तो उसमें अगर ये फ्री बोर्ड नहीं रहेगा, तो देयर विल बी अ टेंडेंसी कि हॉट मेटल विल स्पिल आउट फ्रॉम द लैडल। और स्पिल आउट होने से क्या होगा, वो आसपास के ट्रैक पे गिरेगा। अगर ट्रैक पे कहीं पानी है तो एक्सप्लोशन होगा, या अभी मान लीजिए कि ड्राई वेजिटेशन है, तो लॉट ऑफ फायर विल बी देयर इन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रैक। तो ये फ्री बोर्ड का रखना भी जरूरी है। तो जो भी अगर आप डीएसओ हैं या ब्लास्ट फर्नेस में है, तो इसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं नॉर्मली, वो प्रोडक्शन ज्यादा दिखाने के लिए, या लैडल अवेलेबल नहीं है, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, ओवर पोरिंग कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 250 का जो फ्री बोर्ड है आपको दिखना है। और ये जो हॉट मेटल ट्रांसपोर्टेशन में ऑलरेडी आई डिस्कस यू कि 5 की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर का रखना है। तो ये सिर्फ हॉट मेटल ट्रांसपोर्टेशन के समय ही नहीं है, जब आप शॉप के अंदर घुसते हैं, जहां पर कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, तो जब भी आप शॉप के अंदर घुसते हैं, तो भी आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए। और कोई भी जो लैडल है ना, वो टिल्टेड कंडीशन में नहीं जाना है। बहुत बार आप देखेंगे स्पेशली स्लैग लैडल्स जो है, वो टिल्टेड है तो टिल्टेड ही है, या कभी बॉलिंग किया गया उसमें, तो वो आपका जो उसके रैचेट्स खराब हो गए हैं, तो वो थोड़ा टिल्ट है, उसी में वो चल रहा है। तो टिल्टेड कंडीशन अगर नजर में आए, तो उसको इमीडिएट रिपोर्ट करके एंड इट हैज टू बी टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन और रेक्टिफाइड। और ये जो है, ये लोग बता रहे हैं कि एट ऑल द क्रॉसिंग्स ऑफ द ट्रैक विथ ए रोड और वॉकवे डेंजर और क्रॉसिंग साइंस जहां पे भी रहेगा, ये जो हम लोग ये बोलते हैं ना अपना, ये जो ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम, तो ये हमको मैंडेटरीली ऑडियो विजुअल अलार्म्स को देना है, उसकी बात कर रही है। तो ये हर प्लांट में कमोबेश जो है, ये ऑडियो विजुअल अलार्म्स हर जगह भी मोटे मोटे जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग्स हैं वहां लग गए हैं। और ये जो यहाँ पे आप एक पॉइंट देखेंगे, ये जो डिविडिंग
तो जो भी आपके पास जो है ना रेल ट्रैक के बगल में आप देखते हैं नॉर्मली ट्रैफिक का कंप्लेंट रहता है, सिविल को बोला है, सिविल घास नहीं काट रहे हैं, सिविल वाले घास बहुत बढ़ गया है, जंगल है ये। तो ये डिवीडिंग वाला काम जो है ये थोड़ा सा हमें प्रायोरिटी पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज डिवीडिंग नहीं होने से क्या होता है, जो नॉर्मली मैंने एक्सीडेंट्स देखे हैं, ट्रिपिंग है, कोई आदमी गया वहां पे और वो जंगल है, ड्रेन है, चलने को जगह नहीं है और वो गिर जाते हैं, पैर में चोट लगता है, उनके हाथ में। केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स भी बहुत हो जाते हैं उसमें, कोई कुत्तों का भी राज रहता है वहां पे, तो ये डॉग बाइट के केसेस भी रहते हैं। तो अगर डिवीडिंग रहेगा, एरिया क्लीन रहेगा, तो हमारे पास जो शंटिंग पोर्टर जिसको कि उतरना पड़ता है, लोगों से डाउन आता है, वो उसकी सेफ्टी जो है हम इंश्योर कर पाएंगे। और ये जो भी है ना, ये जो ड्राई वीड्स को क्लियर भी करना है, ये जो मैं बताया कि जब अगर फ्री बोर्ड नहीं रखेंगे और या स्पीड लोगों का ज्यादा होगा, या सडन अगर आप लोगों में ब्रेक करेंगे, या सडन अगर उसको जब आप स्टार्ट करते हैं लोगों को, जब आप ट्रैक्शन स्टार्ट देते हैं उसमें, तो मेटल स्प्लैशिंग के चांसेस रहेंगे और अल्टीमेटली उसके चलते फायर हैजार्ड्स बढ़ेंगे। और एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन दी ट्रैक्स क्या होगा, ये नॉर्मल फिनोमिना हम लोग देखते हैं, हम बोलते हैं कि ट्रैक को आप साफ रखिए, ड्राई रखिए, लेकिन हमें पानी मिलता है बहुत जगह। तो क्या होगा इसमें, एक्सप्लोजन रिस्क इन लिक्विड मेटल हैंडलिंग जोन्स। अगर हम एसएमएस में जा रहे हैं या ब्लास्ट फर्नेस में जा रहे हैं, हॉट मेटल साइड में, पानी में अगर ये मेटल गिरता है तो एक्सप्लोजन होता है। नॉर्मली ये आप सेम एक्सप्लोजन हमें एफएसएन वाले या एमआरडी वाले साइट्स में भी, जहां पर कि ये स्लैग डंपिंग करते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि डंपिंग पिट है, वहां पे बरसात के दिन में पानी है, डंपिंग की और एक्सप्लोजन हो गया। तो सेम थिंग विल गेट रिपीटेड हियर आल्सो बिकॉज ऑफ वाटर एक्युमुलेशन ऑन द ट्रैक्स इन स्टील एंड आपका ब्लास्ट फर्नेसेस एंड एसएमएस। इट आल्सो एग्रेवेट्स द ट्रैक डैमेज, ये ट्रैक को भी ज्यादा डैमेज करता है और हमारे पास क्या रहता है कि डिरेलमेंट्स ज्यादा होते हैं। और जो ठीक है, ये लोको ऑपरेटर चेक करेगा, ये जो दिया हुआ है ना, इंश्योर दैट 2 to 4 स्कॉच ब्लॉक्स आर अवेलेबल ऑन दी लोको। तो कभी भी जो है, जब आपके एरिया में भी कोई लोको आता है तो स्कॉच ब्लॉक उसको रखना पड़ेगा। और ये आप भी चेक करके यू कैन डिमांड दिस थिंग कि भाई आपके पास स्कॉच ब्लॉक नहीं है, जब भी आप कपलिंग करते हो या डीप कपलिंग करते हो तो आपको जो है स्कॉच ब्लॉक को लगाना है। तो स्कॉच ब्लॉक लोको में रहना है, और 2 से 4 स्कॉच ब्लॉक की बात हो रही है। यहाँ पे भी अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो एटलीस्ट 3 ऑफ द क्रू, नॉर्मली क्या था, हम बोलते हैं कि भाई लोको मैनिंग हमारा 4 लोगों का है, 4 लोगों से क्या है कि 4 लोग में 2 लोग भाग जाएंगे, 2 लोग रहेंगे, तो ये ऑफिशियल मैनिंग 2 का बन जाता है, या 4-4 घंटे काम करेंगे लोग। अभी क्या है, स्टील सेफ्टी गाइडलाइंस ने दोबारा जो अपने स्टैंडर्ड में आईपीसीएस वाले चीज को ही इन्होंने फर्दर वेट कर दिया है, और अभी कम से कम 3 जो है क्रू मेंबर होने चाहिए, 1 ऑपरेटर एंड 2 शंटिंग पोर्टर। शंटिंग पोर्टर 2 का जो है ना, ये बहुत ही जरूरी इसलिए हो जाता है कि जब भी आप शंटिंग करते हैं, अगर मान के चलिए कि ऑटो कपलर्स लगे हुए हैं, कभी कभी क्या रहता है कि कपलिंग को थोड़ा अलाइन करना पड़ता है, तो एक शंटिंग पोर्टर को आपको वो 2 वैगन्स के या लोकिया वैगन के बीच में जाना होता है इन दैट कपलिंग जोन। तो जब वो कपलिंग जोन में जाता है, उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हाथ से करना पड़ता है। एट दैट टाइम लोको ऑपरेटर को सिग्नल देने के लिए कोई नहीं रहता है। तो अगर ये जो दूसरा शंटिंग पोर्टर है ना, ही वो अपना पोजीशन रखेगा जिस तरफ की लोको के केबिन में ऑपरेटर बैठा है, क्योंकि लोको का केबिन का ऑपरेटर बोथ साइड बैठ सकता है, तो जिस तरफ ऑपरेटर है, द सेकंड शंटिंग पोर्टर विल पोजीशन हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द लोको ऑपरेटर, वो वहां जाएगा। ही विल ऑल्सो स्टैंड जस्ट आउटसाइड द कपलिंग जोन, एंड अंदर में जो शंटिंग पोर्टर जो कपलिंग को एडजस्ट कर रहा है, उसके सिग्नल को ये फर्दर ट्रांसमिट करेगा वहां पे, सो दैट देयर इज अ बेटर कंट्रोल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर लोको ऑपरेटर है, एक शंटिंग पोर्टर गया, अब शंटिंग पोर्टर अंदर गया, कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रह नहीं जाता है, और लाइन ऑफ साइट ऑफ लोको ऑपरेटर वो रहता नहीं है, जिसके चलते हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वी कैन इंसिस्ट अपॉन कि भाई आपका 3 का माइनिंग है, कागज में आपका माइनिंग 3 या 4 का हो रहा है, तो लोग आपके 3 क्यों नहीं रहेंगे, एटलीस्ट एवरी लोको में। अब तो बहुत प्लांट्स में इसको आउटसोर्स भी किया जा रहा है। तो वी हैव टू इंश्योर कि भाई आपके पास शंटिंग पोर्टर कम से कम 2 हो, बिकॉज ये शंटिंग पोर्टर ही एक दूसरे की सेफ्टी को भी इंश्योर करेंगे। और यहाँ पे सडन ब्रेकिंग नहीं करना है, तो ठीक है। और ये जो रहेगा यहाँ पे कि जो लास्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूं अभी, कि ऑपरेटर मस्ट इंश्योर दैट शंटिंग पोर्टर इज इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन विथ सिग्नल फ्लैग, सिग्नल लैम्प, वॉकी टॉकी, एंड इज फॉलोइंग द सिग्नल्स एंड कीप ए शार्प लुकआउट फॉर ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स। ये खास करके तब होगा जबकि शॉप के अंदर उसको घुसना है, तब शंटिंग पोर्टर ये काम करेगा। और ये जो पॉइंट है जहां मेरा कर्सर है, दिस इज ए वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील प्लांट्स। ये देखिएगा, लोको टू स्टॉप बिफोर लेवल क्रॉसिंग,
हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि लेवल क्रॉसिंग है, बिजी लेवल क्रॉसिंग है, लोको ऑपरेटर आया, हॉर्न बजाया और जो शंटिंग पोर्टर है सामने लोको पे बिल्कुल वो खड़ा है, पर वो उतर नहीं रहा है, और वो खड़ा होकर ऐसे कुछ हाथ फाथ दिया है, एक फ्लैग रखा है, कभी फ्लैग नहीं भी है, एंड द होल लोको और द ट्रेन पासेस फ्रॉम दैट आपका क्रॉसिंग। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली ये बोला गया है कि लोको को स्टॉप करना है लेवल क्रॉसिंग में, शंटिंग पोर्टर हैज टू गेट डाउन, और क्या है, गेट डाउन के बाद उसका काम क्या है, वो वॉक करेगा खड़ा होके, ही विल कॉशन रोड ट्रैफिक एंड सिग्नल दी लोको ऑपरेटर टू मूव दी लोको। मतलब लोको को स्टॉप करना है, शंटिंग पोर्टर सामने क्रॉसिंग पे गया, अदर जो रोड यूजर्स जो व्हीकल्स हैं या अदर रोड यूजर्स को वो कॉशन किया, एंड देन ही विल सिग्नल कि भाई रोड इज सेफ, आप आगे बढ़िए इस क्रॉसिंग पे। और वो फिर कब उठेगा, कब लोको पे, वंस द लोको क्रॉसेस द क्रॉसिंग जोन और द फर्स्ट वैगन क्रॉसेस, कभी कभी फर्स्ट वैगन के बाद में भी लिखा है, और नहीं तो लोको क्रॉस करने के बाद में देन वी विल फर्दर अगेन बोर्ड द लोको। बट उसका उतरना इज बहुत जरूरी, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ा वीकनेस था, बट टू ए ग्रेट एक्सटेंट हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रही है, ये जो वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल थिंग, बिकॉज हम लेवल क्रॉसिंग पे हम लोग सभी लोग जाते हैं, जो हम रोड सेफ्टी की बात कर रहे थे हम लोग भी वो लेवल क्रॉसिंग पे जाते हैं। अगर शंटिंग पोर्टर नहीं उतरा है तो ये जो है आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, यू कैन रिपोर्ट इट टू सेफ्टी, यू कैन रिपोर्ट इट टू ट्रैफिक, टू प्लांट कंट्रोल, जो भी आपका मैकेनिज्म वहां पे करने का है, आप रिपोर्ट करके लेटर कैन बी इशूड, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फेसेट एज फार एज रेल रोड क्रॉसिंग सेफ्टी इज कंसर्न। और यहाँ पे जो बॉटल नेक क्या आता है ना, आप देखेंगे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं, उनको क्या लगता है, अरे यार वो बार बार उतरेगा तो 1 घंटे बाद वो पहुंचेगा वहां पे, कैसे पॉसिबल है ये। तो हमारे यहाँ पे भी वो सब शुरू हुआ था तमाशा, वो हमें बोला जा रहा था कि 2 घंटा लगेगा उसको पहुंचने में, आपका जो नॉर्मल ट्रेवल टाइम 30 मिनट्स है, इट विल टेक 2 आवर्स अगर शंटिंग पोर्टर को हम हर जगह उतारेंगे, ये एक हमें बोला गया बहाना। दूसरा हमें ये समझाया जा रहा था इस प्लांट में, हमें मीन्स कि हमारे जो लोग भी यहाँ पे टॉप में हैं, सेकंड समझाया जा रहा था उन्हें कि ग्रेडियंट ट्रैक का अलग अलग है, आप ये 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का स्पीड की बात करते हैं, 7 किलोमीटर में हमारा वो ग्रेडियंट को नेगोशिएट नहीं करेगा, फिर हमें दो दो लोगों को लगाना पड़ेगा, एंड हमें थोड़ा हाई स्पीड में जाना ही होगा सो दैट वी कैन ओवरकम दैट ग्रेडियंट। तो ये दो हमें एक्सक्यूज बोले गए शुरू में, हम लोगों ने इसको सुना भी, फिर पूरी एक टीम बन गई, फिर इसको देखा गया, एंड अल्टीमेटली ये देखा गया कि आज की तारीख में हमारा शंटिंग पोर्टर हर जगह उतरता है, हमारा जो है हर लेवल क्रॉसिंग में, मतलब जो बिजी वाले हैं डेफिनेटली उतरता है, नहीं उतरता है तो वो रिपोर्ट होता है और वो सस्पेंड होता है, और हमारा स्पीड भी मेंटेन हो रहा है। तो ये दोनों इश्यूज ही खत्म हो गए, जो कि हम लोगों ने इसको आर्टिफिशियली एक हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे कि नहीं हो सकता है, बट ये हो चुका है। तो अगर यहाँ हो रहा है तो हर जगह ही हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चीज के साथ मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अगर आपके प्लान में या जो भी सुन रहे हैं अगर ये इशू है तो वी कैन ट्राई टू ओवरकम इट, मे बी कहीं कहीं जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो, बट बाय एंड लार्ज वी विल बी एबल टू ओवरकम अगर हम करेंगे, बिकॉज ये स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का भी गाइडलाइंस है। तो कोई भी जब हमें होगा कि गलती हो गई हम लोगों से, तो वी विल बी प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स, कि भाई आप किसी का बात नहीं सुनते हैं, आप स्टैट्यूटरी बात नहीं मानेंगे, आप मिनिस्टर ऑफ स्टील की बात नहीं सुनते, तो आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो आपकी जो जगह है वो और कहीं है, प्लांट में नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इस पे ध्यान देना है सभी लोगों को। और ये जो बात हो रही थी कि जो जब भी लोको या ट्रेन को सडन स्टार्ट नहीं करना चाहिए हम लोगों को, सडन स्टार्ट करने में एक तो रहेगा कि अगर कोई जो भी लोड हमारे पास में है उसकी अनस्टेबल होने का है, या अगर लैडल हम कैरी कर रहे हैं तो वहां तो स्प्लैशिंग होना ही होना है, तो ग्रेजुअली हमें उसको स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली स्टॉप भी करना है, सडन ब्रेकिंग भी नहीं करना है। मोबाइल फोन्स का जो है वो क्रिटिकल मूवमेंट ऑफ लोग को जब भी हो तो उसका यूज नहीं करना है मोबाइल को, मोबाइल इज अ मीनस। और ये रोड सेफ्टी में भी हम देख रहे थे, अब वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं डाला कि अराउंड 4.8 to 5% ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज भी है। और व्हेन अप्रोचिंग एनी पॉइंट कीप ए शार्प लुक आउट फॉर अनदर ट्रेन कमिंग। तो ये लोको ऑपरेटर्स के लिए या हमारे हम लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो होगा लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अननोन पर्सन लोकोमोटिव में लोको ऑपरेटर देखेगा, हमें जो जो चीज करना है या जो हमारे लिए एक्शन पॉइंट है यहाँ पे, कि शंटिंग पोर्टर टू बी पोजिशन एट बोथ एंड ऑफ द लोकोमोटिव फ्रंट साइड इन मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो शंटिंग पोर्टर जो है दोनों एंड में लोकोमोटिव के रहना है, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों शंटिंग पोर्टर अवेलेबल हो। ये जो एक कमी आ गई है कि एक शंटिंग पोर्टर और एक ऑपरेटर चलते हैं, इस चीज को हमें मतलब वी नीड टू टाइड ओवर दिस थिंग, और इसको इन्फोर्स करना है कि वी नीड टू शंटिंग पोर्टर्स।
शंटिंग ये जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, ये हम लोगों ने इसको भी मोटामोटी बहुत हद तक इसको कर दिया है अभी, बिकॉज अंधेरे में तो वो विजिबिलिटी नहीं रहती है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट में क्या है ना, दे आर बेसिकली कंस्पिक्यूसिटी सूट्स जो हैं, you are making yourself conspicuous by wearing that jacket and you are adding to your own safety. So it's a very small thing, it doesn't cost also much, but it adds to the safety of the shunting putter as such. So जो भी अगर शंटिंग पुटर हमारे एरिया में काम करते हैं या हमारे डिपार्टमेंट में घुसते हैं वो लोग, या कोई ट्रैफिक वाले अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पे ये छोटी चीज है, लो कॉस्ट चीज है, एंड वी कैन इंसिस्ट ऑन दिस रियली हेल्प्स। और ये जो रहेगा हमारा कि लोकोस के ऊपर में कभी कभी क्या रहता है, ठीक है लोको में लाइट है, साउंड भी है, बट कभी कभी दो पास पास के ट्रैक में दो लोग आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि, और ये जो मान लीजिए उस समय जो आपका ऑडियो विजुअल अलार्म भी बजता है, तो कभी कभी रियल में मैं खुद भी फेस करता हूँ कि कंफ्यूजन हो जाता है कि यार लोको आवाज भी आ रहा है, इतने टू मच ऑफ साउंड, कहाँ से कौन आ रहा है समझ में नहीं आता है। तो लोकोज में अगर रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स हम लोग लगा दें तो ये क्या होगा कि वो दूर से विजिबल हो जाएगा, तो हमें समझ में आएगा नहीं यार ये दो लोग हैं, दोनों आ रहे हैं। अदरवाइज जो लोगों का कलर है, अनटिल अनलेस आपका इल्यूमिनेशन बहुत हाई हो, वो थोड़ा सा जो है ना अपने विजिबिलिटी उसकी जो है थोड़ी ऑब्सक्योर्ड रहती है, तो वो इशू आ जाता है। और जो शंटिंग पुटर जो है यहाँ पे ना, दे शुड नॉट मूव बिटवीन दी कपलर्स। नॉर्मली एडजस्ट करने के लिए जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई इनको बम्पर के बीच में और कपलर के बीच में नहीं रहे, वो कपलर के नीचे नीचे रहे, नीचे से एडजस्ट करें एंड दे शुड कम आउट, और उस समय दूसरा पोर्टर जो है उनको गाइड करता रहेगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ये पॉइंट हो गया। एंड डिस्प्ले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे ना आपके डिपार्टमेंट के जोन में जो है काम हो रहा है, पीडब्ल्यू कुछ काम कर रहा है, वो ट्रैक चेंजिंग है या कुछ भी है, और वो मन मर्जी से अपना जो है कुछ भी वो फीता एक लगा देते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं, कोई बिल्कुल पास लगाता है, कोई इतने दूर लगा देता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस गाइडलाइन इज वेरी क्लियर कि आपको जो बैनर या जो रेड फ्लैग आप डालेंगे, रेड फ्लैग का भी स्टैंडर्ड जो डायमेंशन है ना, वो एक दूसरे वाले स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। और ये कितने डिस्टेंस में लगना है, ये लगना है 30 to 50 मीटर्स अवे ऑन बोथ एंड्स ऑफ द वर्किंग एरिया। आप परमिट टू वर्क तो लेंगे ही लेंगे। परमिट टू वर्क जो ट्रैफिक ऑपरेशन जो मेन है ना, ट्रैफिक ऑपरेशन से परमिट टू वर्क होगा, जो पीडब्ल्यू का आदमी को अप्लाई करके और उनका सैंक्शन लेगा उसमें। और ये जो फ्लैग्स लगेंगे ये 30 to 50 मीटर्स एंड ऑन दी बोथ साइड्स, एंड इसका जो एक प्रॉपर साइज है, प्रॉपर साइज में होना है, सो दैट इट कैचेस द आई ऑफ लोको ऑपरेटर इफ एक्सीडेंटली ही इंटर्स ऑल्सो। और यहाँ पे पॉजिटिव आइसोलेशन ऑफ द ट्रैक या स्कॉच पहले से ही आप डाल के रख दिए, सो दैट आपका एक्सीडेंटली भी कोई चीज नहीं आ पाए, दैट इज ऑल्सो एडिशनली इट कैन बी डन। तो कभी भी आपके जोन में, अगर आपके डिपार्टमेंट के पेरिफेरी में अगर ये ऐसा कोई काम हो रहा है ट्रैक का, तो एनी वन कैन इंसिस्ट ऑन दिस थिंग, यू हैव टू डिमांड कि भाई ये तुम लगाओ, तुम्हारा तो ये बहुत पास लगा दियो, इसको लेके जाओ, 40 मीटर पे लगाओ, 50 मीटर पे लगाओ। ये हम लोग कर सकते हैं, या तुम इसमें दिखाओ कहाँ स्कॉच ब्लॉक डाले हो, लाइन को कहाँ ब्लॉक की हो, यू शो अस दिस थिंग। तो जो हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट में नहीं है और जो हम जुड़े हुए हैं इस रेल सेफ्टी में, तो हमारे लिए ये चीजें हैं कि हमारे एरिया में भी तो मूवमेंट तो हो रहा है रेल का, तो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन ऐड टू द सेफ्टी ऑफ माई जो डिपार्टमेंटल जो बैटरी लिमिट है, वहां पे मैं सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आई नीड टू इन्फोर्स सर्टेन थिंग्स। तो क्या इन्फोर्स करना है, यू नीड टू नो दोस थिंग्स। तो माई एंडेवर थ्रू आउट दिस सेशन वॉज कि मैं आपको कुछ बेसिक चीजें इनपुट्स दूं, जिसको कि आप अपने वर्किंग में लेके और आप अपना जो आपका बैटरी लिमिट जो है, जहां पे आपके आपके लोग जो हैं, आपके एम्प्लॉयज, आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अफेक्टेड होते हैं बाय दैट ट्रैफिक मूवमेंट, तो यू टेक डिस्टिंक्ट एक्शंस सो दैट देयर सेफ्टी गेट्स इंश्योर्ड। तो उसी पर्पज से ये चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन रेल एंड रोड सेफ्टी। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। ये अपने आप को अनम्यूट करें राजेश, अपने आप को अनम्यूट कर लें। Thank you, sir. Thank you, sir, for covering the topic and presenting the topic in scientific yet very simple manner to us. Also, the safety guidelines, the relevant IPSs, and all the statutory rules that you shared for the topic will further enrich our knowledge and will ultimately lead into the safe workplaces for us. I would now request the participants to kindly put forward their queries if they have in the chat box.
Sir, we have few queries. If you can see in the chat box, we have some 4 to 5 questions. I've collected and put it on your chat box. If you want, is it visible or shall I read it from here, sir? Please. So your voice is not there, sir. हाँ, तो ये जो पहला दिख रहा है एक मैं क्या जो क्वेश्चन मार्क किया हुआ है Yes, उसको sir. पढ़ूं? Question one, sir. Can you share? अच्छा, Yes. can you share some best practices in rail safety in steel plants or industry? Many ISP rail movement has been Yes, that's the electrified. second question, sir. Question two. Yeah. The first question is, can you share some best practices in rail safety in steel plants or industry? हाँ, तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे ना वो व्हाट इज द डिजायर्ड लेवल की बात हो रही थी, तो मोस्टली वी आर ऑन द डिजायर्ड लेवल एंड देयर आर सर्टेन गैप्स. इसके बाहर में कोई बेस्ट प्रैक्टिस है? उसमें क्या रहता है बेस्ट प्रैक्टिसेस में? जो एक दो चीज मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे कि शंटिंग पोर्टर को नीचे उतरना पड़ रहा है, वो जब पॉइंट करता है ना तो ही हैज टू कम डाउन ऑफ द फ्रॉम द लोको. अब वो क्या है, रनिंग लोको में कम डाउन करता है, कभी कभी फिर चढ़ता भी है, तो वो जो सीढ़ी से स्लिप करके एक्सीडेंट्स होते हैं. तो टाटा स्टील में या एंड भिलाई ऑल्सो एट वन पॉइंट एट वन प्लेस व्हाट दे हैव डन इज कि वो प्लेटफॉर्म टाइप का ऊपर में ही बना हुआ है सो दैट वो लोगों के पास से प्लेटफॉर्म है एंड ही कैन ऑपरेट दी आपका जो इनका जो जो पॉइंट जो बनाते हैं ना दैट पॉइंट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म एंड ये बिल्कुल वो नीड टू कम डाउन जो है वो खत्म हो जाता है. तो दिस इज वन थिंग बट आई हैव सीन इलेक्ट्रिफिकेशन अगेन इन ए प्लांट लाइक अवर्स इज एन इशू. ये जो सेकंड पॉइंट इनका जो Yes. था यहाँ पे, Yes. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा अभी भी जो डीजल सिस्टम चल रहा है वही अभी तो चलता रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. एंड अगेन जो क्लियरेंस देना पड़ेगा आपको, तो दो थिंग्स आर नॉट अवेलेबल अभी जो द वे द मोमेंट्स आर डिजाइंड हियर. एंड हाउ सेफ्टी इन लॉन्ग रेल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इंश्योर्ड. तो ये तो इनके पास तो बहुत सारे वो टेल्फर टाइप के अरेंजमेंट है ना, ये जो लॉन्ग रेल्स जो भिलाई वाले जो अपना करते हैं, दे हैव दैट लॉन्ग इनके पास में वैगन्स है एंड दे हैव दिस मल्टीपल पॉइंट जो होल्ड करने के लिए ये करते हैं. तो चूंकि हम ये लॉन्ग वाला हैंडल नहीं करते हैं यहाँ पे, तो अभी सेफ्टी इंश्योर करना मैं आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट थिंग. बट नॉर्मल जो उनका कुछ होगा, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. ये भिलाई पीपल समवन कम फ्रॉम भिलाई कैन आंसर दिस बेटर. Can you share some safety aspects related to electrical overhead lines? And not now because electrical ये मेरे अभी टॉपिक में नहीं है और ये electrical overhead lines का I can come back to you. अगर राजेश ये I will be sharing this with you. I have this but Okay, sir. right now I'm not sharing but I will share. Okay, sir. If you can share a video of braking distance at last, ठीक है. मैं ABS के ऊपर में lot of good videos are there on ABS. How this आपका जो एंटी लॉक ब्रेकिंग करके एंड हाउ वी कैन मैन्यूवर सेफली करके, तो ये आपको वोल्वो का मर्सिडीज का ब्यूटीफुल वीडियोस यूट्यूब में भी मिल जाएंगे. बट स्टिल इफ यू वांट आई हैव रेडीमेड वीडियोस इन माय आर्काइव. आई विल बी शेयरिंग दैट वन. There's one more question at the last, sir. हाँ बोलिए सर. Are anti-collision device installed in loco inside plant like we have in cranes? No, they are not installed in Durgapur steel plant. They are not here. Okay. In none of the locos they are there. So we have one more question from Mr. R.K. Singhal just now. What is the speed limit within steel plant as per factory rules? It is in West Bengal. It is 7 kilometers. The train should not move more than 7 kilometers, and when going with this liquid metal, not more than 5 kilometers. In some of the factory rules, it is also mentioned 10 kilometers. So I don't know इनका जो भी state होगा, but in West Bengal it is 7 kilometers. Okay, sir. I guess, sir, that's the questions. We have taken all the questions which participants had put in the chat box. Now, for any further questions, you may contact sir directly. I would also request all the participants to kindly put forward their feedback for this session and also the suggestion for the future topics related to safety which they would like to hear upon. For the reference purpose of all the participants, the copy of presentation shall be made available at SSO portal shortly after the webinar, possibly tomorrow. And you can also visit the past webinars presentation also.
I would now heartily thank our ED SSO, Shri KK Jha, for being inspiration for all our endeavors. I would also like to thank our CGMs, Shri M. Chaudhary and Shri S. Vashisht, for their constant guidance and encouragement. I thank our speaker for the day, Shri A.K. Tiwari, for taking time out of his busy schedule and for giving inputs for such important session. I also thank MTI for giving necessary IT support for hosting this webinar. I thank the management from all the plants and units for the encouragement given to the participants to come for this session. And at the last, and most importantly, I'd like to thank all the participants for their lively feedback and congratulate Team SSO for making this webinar a success. Thank you all.